بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول وہ معصوم سی کی تیسری قسط ہے، اور چلیں شروع کرتے ہیں اپنی تیسری قسط کو۔ کیا ہوگا ابھی آگے، کیونکہ بہت ہی ایک سیٹ پوزیشن پہ یہ ہمارا ناول پہنچ چکا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ بہت انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ ولید فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ بھائی، میرا بھائی، اس کے بلیجے میں بہت بے چینی تھی۔ آئی ایم سوری، ان کی حالت کافی نازک ہے۔ سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اگر ان کو ہوش نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلے جائیں۔ ان کی کمر میں کافی چوٹ آئی ہے، سپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے، اب وہ ساری زندگی کبھی چل نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر ان کی حقیقت بتاتا چلا گیا۔ ولید کی آنکھیں سر ہو گئی۔ اس نے غصے سے ایک مکہ دیوار پر دے مارا اور سونی کے چہرے پر بیزاری نمودار ہوئی۔ نمرا اور ماں کے رونے میں روانی آ گئی۔ دادا جان تو ویسے ہی داغے تھے، وہ سب یہ بھول گئی کہ حوریہ کہاں ہے۔ شاید دعاؤں کا اثر تھا۔ شہریار سلطان کو پورے 40 گھنٹے بعد جا کر ہوش آیا۔ بہت مشکل سے ڈاکٹر نے ایک فیملی ممبرس کو ان سے ملنے کی اجازت دی۔ سب سے پہلے اماں سے ملنے گئی۔ وہ ماں کے سامنے کتنی مشینوں میں جھگڑا پڑا تھا، سر پٹی میں بندھا ہوا تھا۔ اماں، حوریہ کہاں ہے؟ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو اکٹھا کر سوالا۔ اس وقت بھی صرف حوریہ کی فکر ہو رہی ہے۔ اماں شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ میں نہیں جانتی بیٹا، وہ ہمارے ساتھ اسپتال آئی تھی۔ اس کے بعد اس کا سونیا سے کوئی جھگڑا ہو، غصے سے وہ اسپتال سے کہیں چلے گی۔ وہ گھر بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ آنسو بہاتی سر جھکائی اب شرمندہ تھی۔ شہریار کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ اتنی ناراض تھی کہ اسے چھوڑ کر چلے گی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حوریہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو شہر کے سوا، شہریار کے سوا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ میں نکالا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جائیں یہاں سے۔ وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتا چہرہ موڑ کے، بیٹا ماں کو تکلیف ہوئی، پلیز اماں، آپ میری بیوی کی حفاظت نہیں کر پائی۔ 2 دن سے لاپتہ ہے، اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ معلوم نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ اس کے دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں رہا ماں۔ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کو فکر ہوتی، نہیں تو وہ بہو تھی، جہاں مرضی جائے۔ اب وہ تلخ ہو رہا تھا، آنسو کو اس کا چہرہ بگوڑ رہے تھے۔ پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میری عزت میری ذمہ داری تھی اماں، وہ بے بسی سے چہلایا۔ سارے جسم میں درد اٹھ رہی تھی، مگر دل تو وہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اماں بے بسی سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ کہاں ہے بیوی؟ پلیز واپس آ جائیں۔ آپ کے بنا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہاں سے ڈھونڈوں کر لاؤں آپ کو؟ میں تو فی الحال ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ کتنے ہی انمول موتی ٹوٹ کر کپڑے میں جذب ہو گئے تھے۔ دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری بیوی کی حفاظت کرنا، میں اسے تیرے ایمان میں سونپ دیا، مجھے میری امانت جلد واپس کر دے۔ شہریار نے ایک نظر چھت پر ڈال کر التجا کی، پھر آنکھیں بند کر دی۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا انتظار طویل ہو جائے گا۔ 2 ہفتے اسپتال میں رہا۔ ولید نے بہت کوشش کی شہریار سے بات کر سکے، مگر حوریہ کے معاملے میں وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو خدا کے ایمان میں دے دیا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اللہ پاک اسے خود اپنے ایمان میں لوٹا دے گا۔ سونی نے بھی آگ لگانے کی کافی کوشش کی، بہت محبت پیار سے تھے نا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ساری زندگی کے معذور ہو گئے تو وہ بھاگ گئی۔ سونی کے الفاظ کتنی دیر شہریار کے دماغ میں توڑے کی طرح بجتے رہے، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس اسی سے چادر واپس لے لی جو اس کی بیوی کی تھی۔ سونی نے بھی احساس کیا، رکھو اپنے پاس، مجھے کسی کو ترنت پسند بھی نہیں ہے، چاہے وہ پھر کپڑا ہو یا مرد۔ اس بات پر شہریار کے چہرے پر محتسن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہریار کے معذور ہونے کی وجہ سے حوریہ تو اس سے کبھی چھوڑ کر نہ جاتی، مگر سونیا کے دل سے وہ اتر گیا تھا۔ وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزرتا رہا۔ حوریہ کا غائب ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ نہ اسے شہر ڈھونڈ سکا، نہ شہریار ڈھونڈ سکا، نہ ولید کے ہاتھوں سے بچ کر کہاں کی کوئی نہ جان پایا تھا۔ مگر اس عرصے میں شہریار بہت بدل گیا تھا، اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ولید کی تو شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے سامنے وہ کوئی رد عمل نہیں دیتا تھا، نہ کوئی اس سے حوریہ کی بات کرتا تھا۔ حوریہ کو اپنے سینے میں دفن کر گیا تھا۔ محبت آج بھی اتنی ہی شدید تھی، مگر اب وہ ویل چیئر پر آ چکا تھا۔ وہ لوگوں کا مزاج جو رہ گیا تھا، اوپر سے 6 ماہ سے حوریہ کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ایک امید یہ تھی کہ شاید کبھی اسے واپس مل ہی جائے۔ اگر وہ واپس آئی تو کیا شہریار اس قابل تھا کہ اسے قبول کیا جائے؟ جو بھی تھا، وہ اب تک اس کی نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ جب اسے بہت سٹریس فیل ہوتا تو آنکھیں بند کرتا، اس کے چہرے اپنے تصور میں لاتا، صرف ایک فکر بولتا، آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ اس کے بعد واقعی اسے سکون آ جاتا۔ ولید اس کے ساتھ نارمل بات چیت کر رہا تھا، شہریار بھی نارمل بات کر لیتا، مگر اب وہ پیار، وہ بھائیوں کی دوستی، وہ سب کہیں کھو گئی تھی۔ ولید 6 ماہ تک حوریہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر نہ جانے کون سے ویل میں چھپی بیٹھی تھی جو اب تک مل ہی نہ سکی۔ وقت مزید گزر جا رہا، شہریار مزید اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسی طرح کے 1 سال گزر گیا۔ اس دوران دادا جان نے سونیا اور شہریار کی شادی کروانی چاہی، مگر سونیا نے تو ٹکا سے جواب دے دیا، میں ایک معذور آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میرا دماغ خراب ہے جو میں اس آدمی سے شادی کروں۔
नहायत नफरत खार से कहती, इसने अपना तो हर रिश्ता ही शरियार से ख़त्म कर दिया। हाँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, तुम जैसे हूर से शादी करने के लिए लफ्ज़ हूर पर, इससे हूर पर एक बार फिर याद आई, मेरी शादी हो चुकी है और आइंदा मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसने सख्ती से दादा जान को वार्न किया। इस दिन के बाद दोबारा इनमें से कोई बात नहीं हुई। इसी एक साल में सोनी अपनी खाला के बेटे से शादी करके हवेली से जा चुकी थी। वलीद की हरकतें भी अब वैसी ही थी, बस फर्क ये था कि अभी भी वो शरियार से छुपी हुई थी। कुछ दिन पहले ही शरियार ने डॉक्टर से मशवरा दी कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना ऑपरेशन करवाए। हो सकता है ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो चलने फिरने के लायक हो सके। अम्मा ने इसे काफ़ी फोर्स किया, इसलिए कि वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए राजी था, वरना इसका बिल्कुल दिल नहीं था इस मुल्क को छोड़कर जाने का। इसे यकीन था हुर्रिया इसी शहर में सही, मगर इस मुल्क में ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। दिल पर पत्थर रखकर वो अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क चला गया। अगर ना जाता तो फिर ये होला दरमियान में रह जाता कि अब एक मजदूर है तो क्या हुर्रिया इस तरह कबूल करेगी। इसने सोच लिया था कि अब हुर्रिया के सामने बिल्कुल पहले जैसा तो दुरुस्त होकर जाएगा। शरियार के जाने के बाद तो जैसे वलीद दोनों हाथ घी में चले गए, अपनी मर्जी से दिन रात, रातों हफ्तों महीनों से गायब रहता, याशी करता, शराब पीता। गर्ज के इस वक्त इतना ज़्यादा था कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा था, मगर कब तक? एक न एक दिन तो वह पकड़ भी जाएगा। 5 साल बाद वक्त अपने भयानक फंग फैलाए और ही जा रहा था। अब जिंदगी मजीद 5 साल आगे सड़ेगी। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला। बस अगर कोई नहीं बता तो शरिया तब हवेली में दाखिल ही हुआ था जब इससे मुलाजमा ने आशी की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। फौरन इसके कमरे में भागा, जमीन पर गिरी, अपने पेट पर हाथ रख कर तड़प रही थी। शरियार को समझ नहीं आया क्या करे। फौरन अपने वाहन में उठाया, हवेली से बाहर की तरफ भागा। इसके साथ गार्ड की 2 गाड़ियां थी। साहब, यहाँ गाँव के इख्तितार में एक नई अस्पताल खुला है, सुना है वहाँ कोई नई डॉक्टर आई है। कुछ ही दिनों में सारे आसपास के इलाके में छा गई है। इसके बाद लेकर जाओ, वो बीबी जी को जरूर बचा लेगी। एक गार्ड ने इसे संजीदगी से नसीहत की। शरियार ने सर हिलाते हुए फौरन गाड़ी इस अस्पताल जानवर ली। ये गाँव की तरफ जाती सड़कों के वस्त में बना एक अस्पताल था, जहाँ से 4 रास्ते निकलते थे, चारों गाँव की तरफ से जाते थे। यहाँ करीब दूर की गाँव की तमाम औरतों का इलाज मुफ्त किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी डिलीवरी तक का खर्चा भी मुनासिब था। गांव की औरतों के लिए सहूलत बहुत बड़ी थी। इस अस्पताल का इफ्तिताह कुछ माह पहले ही किया गया था। शहरियार आशिक को अपने तनाव बाजू में उठाए अस्पताल के अंदर रखा। डॉक्टर डॉक्टर वो चिल्ला रहा था। फौरन नर्सें भागती हुई आई। आओ आई कार्ड, इनकी हालत तो काफ़ी नाजुक है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप इन्हें जल्दी से लेबर रूम में शिफ्ट करें। वो नर्सें आपस में बातें करती हुई फौरन हरकत में आई। वो केबिन में दाखिल हुई। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से चलें, एक इमरजेंसी केस है। लेडी की हालत बहुत खराब है। वो जो सर झुकाए खड़ी थी, केस को स्टडी करने में बिजी थी, फौरन कुर्सी से उठी, अपने चेहरे पर मास्क लगाए और फौरन लेबर रूम की तरफ भागी। शरियार वहीं खड़ा चक्कर काट रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी आशी गिरी कैसे। उसे बिना देखे जल्दी से अंदर गुजर गई। कुछ ही देर बाद नर्स बाहर आई। प्लीज आप बता दें, आप इनके साथ रिश्ते क्या है? इसने फॉर्म साफ किया जहाँ शरिया ने अपना नाम रिश्ता लिखा। 2 घंटे बाद दरवाजा खुला और नर्स बाहर निकली। मगावर को सर बेटी हुई है। इसने मुस्कुराकर कमर निपटी। इस नन्ही सी जान को शरियार की तरफ बढ़ाया। शरियार सुल्तान का रोम रोम काम उठा। वो आशी, वो ठीक है? इसके लहजे में तड़प और बेबसी थी। नर्स ने मुस्कुराते उस बात में सुनाया। इतने में वो अपने चेहरे से मास्क उतारता हुए लेबर रूम से बाहर निकली। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी सर। अपने चेहरे पर ग्लासेस लगाए वह फाइल देखती हुई संजीदगी से बता रही थी। शरियार की नजर जैसे इसके चेहरे पर पड़ी, वो सागत रह गया। पूरे 6 साल बाद इसके सामने आई। वो कितनी बदल गई थी। सिंपल से वाइट ट्राउजर के ऊपर रेड कलर के शर्ट पहने, इसके ऊपर डॉक्टर कोट पहन रखा था। पट्टा गले में जुड़ रहा था। इसके खूबसूरत बाल इसकी मेसी सा जुड़ा बनाया हुआ था। नजरें का चश्मा आंखों पर लगाए और संजीदगी से अपने हाथ में मौजूद कोई फाइल देख रही थी। मगर शरियार बुद्ध हो गया। कितने साल वो तड़पा सिसका था इसे लिखने के लिए, देखने के लिए, और आज वो कितनी बदल गई थी, कितनी अजनबी को सामने आई थी। इसने अपने होंठ हिलाने चाहे, डॉक्टर हो रिया, मगर इससे पहले ही किसी मर्द की आवाज़ ने शरियार के हल्क से आवाज़ छीन ली। लेकिन कोई डॉक्टर था। हुरिया ने बिना शरियार को देखे इस डॉक्टर को देखा और उसके पीछे से एक लड़की निकली, छोटी सी 3-4 साल बच्ची। शरियार ने एक नज़र हुरिया को देखा, इस नज़र बच्ची को, जो मुस्कुराकर हुरिया की तरफ बढ़ी थी। मामा, वो भागती हुई और हुरिया के टांगों से लिपट गई। हुरिया खुल के मुस्कुराई, झुक कर उसे उठाया और चारों टाट इसके दोनों गाल झूम लिए। मगर शरियार सुल्तान पत्थर हो गए। ऐसा लगा किसी ने इसे हल्क में हाथ डालकर जान निकाली है, शीशा चीर कर दिल निकाल दिए। इसके हाथ में जान हो गई। नन्ही बच्ची बुलबुलाकर रो पड़ी। सारा कॉरिडोर इस बच्ची के रोने से गुंजा। सबकी नजरें इस बच्ची तक गई जो अब कुछ देर पहले पैदा हुई थी। मगर शरियार बच्ची को नहीं देख रहा था। वो हुरिया इसकी गले लगी इस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक हुरिया ने बेचारा उठाकर इस बच्ची को देखा और बच्ची से होती नजर इस शरियार तक गई। इसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक नजर नहीं आई। नर्स को होश में आई। सर, आपकी बच्ची रो रही है। इसने शरियार को मुतवज्जो किया। फौरन होश में आया और बच्ची को अपने सीने से लगाकर थपथपाने लगा। हुरिया बिना दूसरी नजर इस पर डाले अपने केबिन की तरफ बढ़ गई।
उस छोटी सी बच्ची को अभी तक अपने गले से लगा रखा था। शरियार जैसे होश में आया फौरन इसके पीछे बढ़ा। इसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। इसके गुस्से निकाह में थी, फिर ये बच्ची, मामा, ये सब क्या था? वो बिना किसी की परवाह किए कैबिन में अंदर खोल कर दाखिल हुआ। इसे चेयर पर बैठा रही थी और चॉकलेट खोल के इसके हाथ में थमा रही थी। हुरिया, जिंदगी में पहली बार शरिया ने इसके नाम से मुखातिब की था, वरना उसके बीवी कहता था। वापस पलटी मगर आंखों में अभी तक अनजान थी। जी, इसने अनजान लहजे में सवाल किया। वाह, इतनी जल्दी मुझे बोलकर तुम किसी और की होगी, वो एक बच्ची की माँ भी बनेगी। तुम तो मेरे निकाह में थी ना? शरिया ने सारे लिहाज बोलता हुआ आपसे तुम तक आ गया। इसके लहजे इतना ऊंचा नहीं था कि बाहर कोई मुतवज्जो था, मगर इतना वाज़ेह जरूर था कि वो हुरिया के अंदर तक उतरा। इसका दिल शायद टुकड़े में टूटा था। रोमी, चलो जाओ गार्डन में खेलो, मामा को अभी काम है। इसने नरमी से बच्ची को काल थपथपाकर इसे नीचे उतारा और फौरन बाहर निकल गई। वो वापस इसकी तरफ बढ़ी। आप भी तो आगे बढ़ गई शरियार सुल्तान। इसने एक नज़र शरियार के सीने से लगी इस बच्ची की तरफ इशारा किया। एक बच्ची के बाप भी बन गए, क्या जिंदगी गुजारने का हक सिर्फ आपको है? इसके लहजा बेतासुर और अजनबी था। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, मगर शरियार को जफर लग रहा था। मजीद इसके करीब हुआ। मैं मर्द हूँ, एक वक्त में 4 शादी कर सकता तुम और होता, और वो भी मेरे निकाह में, तो कैसे तुमने किसी दूसरे के साथ? हद तक एहसास इसके चेहरा सुर हो रहा था। इसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त कर रखा था, होना तो दिल कर रहा था हुरिया को खींच के एक थप्पड़ दे मारा। 18 साल हुरिया, जो खूबसूरत, शराफत, मासूम, तुम में कुछ भी वैसा नहीं रहा। ठीक कहा था वली ने, तुम जैसी लड़कियां मर्दों को सिर्फ बेवकूफ बना सकती हैं। अब वो अपने मुझ से जहर उड़गड़ा था। सीधा हुरिया के कलेजे को छलनी छलनी कर रहा था। मेरा बचपन से ख्वाब था डॉक्टर बनना, मगर अपने मरबूतों मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी खुद ही पूरी करनी ज्यादा पसंद है। 4 माह पहले ही मैं यहाँ इस गाँव के अस्पताल में आई थी, और पहला केस एक अमीर रईसजादे की बीवी का था। इस रईसजादे को खुदा ने बेटा दिया था, मगर इससे पहले ही एक 3 साल बेटी भी थी। और इस रईसजादे की दूसरी शादी थी। पहली बीवी बेटी को जन्म देते हुए मर गई थी। मैं नहीं जानती थी कोई दूसरी हुरिया बने, क्योंकि इसकी सतेरी माँ इसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैंने 2 दिन तक अस्पताल में इसकी सतेरी माँ और बाप को इस बच्ची के साथ रवैया देखा। मुझे बहुत तकलीफ है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्ची को अडॉप्ट कर लूंगी। इस एक माँ की ज़रूरत थी, मैं माँ बन गई, क्योंकि मैं इस गाँव को दूसरी हुरिया नहीं दे सकती थी। वो बोली तो इसके लहजा कुछ बिखरा सा था। शरियार का चेहरा लट्ठे के लम्हे के हजारों से मैं शर्मिंदगी के एहसास में बदल गया। अपना ज़रूरी सामान टेबल से उठाकर वापस इसकी तरफ आई। मैं मासूमियत और मासूम हुरिया इसी रोज़ मर गई थी, जिस दिन आपके भाई ने मुझे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाला था और कहा था कि वो भी पलट कर मेरे भाई की ज़िंदगी में न आना, क्योंकि मुझ जैसी करेक्टर लिस्ट लड़कियां शरियार सुल्तान जैसे मर्दों के लिए नहीं बनी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं, मगर औरत सिर्फ एक ही होकर जीती है। मुझे किसी मर्द और उसके साथ की चाह नहीं, मेरे ख्वाब इससे बड़े हैं। बेटी की मुबारक हो। रस्ली मुबारक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर डालकर बाहर निकल गई, और पीछे शरियार का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने खोलता हुआ तेजाब इसके ऊपर डाल दिया हो। इसका बस ना चला, जमीन फटे और इसमें समा जाए। उससे साथ निकल आई, आंखें पानी से भर गई। मैं मर्द हूँ, एक वक्त में 4 शादियां कर सकता, मोहर हो तो वो भी मेरे निकाह में, तुम कैसे किसी दूसरे के साथ? 18 साल हो लिया, जो खूबसूरती, शराफत, मासूमियत तुम में थी, वो वैसे नहीं। ठीक कहा था वली ने, तुम जैसी लड़कियां मर्दों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो। इसकी अल्फाज, इसका रवैया, इसकी तरफ नजरें, हुरिया कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। गार्डन की तरफ आके इसने रूमी को उठाया, घर की जानब चल पड़ी। इन 6 सालों में बहुत कुछ हुआ, मगर शरियार सुल्तान क्या जाने कि हुरिया ने क्या क्या बर्दाश्त किया, कितनी आसानी से उसके किरदार के टुकड़े टुकड़े कर गया। हिफाजत करने वाले मर्द ऐसे होते हैं। हुरिया का अंदाजा बिल्कुल सही था, वह वली की बातों पर ईमान ले आया था। इस वक्त जो इसे तकलीफ हो रही थी सिर्फ एक सौतन और इसकी बच्ची की थी। दूसरी शादी, वो शख्स दूसरी शादी कर चुका था। अब शरियार सुल्तान का सुकून है बीवी। इसके कान में आज भी इसके अल्फाज बाज का सुनाई दे रहे थे। इसने पूरी कोशिश से पत्थर उठाया और दरिया में दे मारा। बाढ़ में गया ऐसा सुकून। पूरे गुस्से से चिल्लाई। रोमी सहम कर एक साइड खड़ी हो गई, वहीं घुटनों में बल बैठी और एक बार फिर उठ रो पड़ी। काफी देर बाद रूमी इसी करीब आई, उसकी गाल निकलने लगी। हुरिया को बेसाता सुकून आया। माँ सिर्फ वही नहीं होती जिसने पैदा किया, इस सांस से जुड़ी औरत माँ होती है। इस बच्ची व माँ अपनी माँ से सुकून दे रही थी। हुरिया ने अपनी जिंदगी की तन्हाई कम करने के लिए बच्ची को पालने का सोचा। वैसे भी इसके पास कोई रिश्ता तो था नहीं, इसलिए वो रिश्ता चाहती थी, और माँ और लाश से बढ़कर खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं हो सकता था। वापस घर आ गई। फिर 2 दिन तक वो अस्पताल ही नहीं की। शरियार उसकी बीवी को देखना ही नहीं चाहती थी, ना ही इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि किसी और के साथ मुकम्मल होता देख पाती। रात गहरी हो गई थी। रूमी इसके सीने से लगी सो गई थी, मगर हुरिया को माजी में खो गई। इस दिन इसे सड़क पर अगर वो ना मिलती तो शायद हुरिया जिंदा भी ना होती। वो कॉलेज से अपना रिजल्ट कार्ड लेने आई थी, तब इसे पता चला कि हुरिया वापस नहीं आ रही। इसने अपना रिजल्ट कार्ड भी कलेक्ट नहीं किया, तो वो इस रिजल्ट कार्ड लेकर कॉलेज से बाहर निकल। कुछ दूर जाके इस दिन गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी से बाहर निकला, अचानक इसकी नजर साइड जमीन में बैठी रोती हुई हुरिया पर पड़ी।
पहले से सिर्फ वहम लगा कि वो हुर्रियत है, मगर फिर से यकीन हो गया वो वहम नहीं था, वो वाकई हुर्रियत ही थी। उसके करीब ये घंटों के बल बैठ के इसके कंधे पर हाथ रखा। हुर्रियत ने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा, अपने सामने ज़ैनब को देखकर। उसे लगा शायद इस दुनिया भरी दुनिया में इसका अपना आप अब भी जिंदा है। वो इसके सीने से लिपट गई, फुट फुट कर रोने लगी। मैं अकेली रहेगी, मेरा कोई नहीं बचा, हुर्रियत बता तबाह होगी। ज़ैनब का दिल दह लौटा। मेरी जान, ऐसी बात नहीं करते, चलो उठो। ज़ैनब ने इसे बहुत मुश्किल से कंधों से पकड़कर खड़ा किया, फिर इसे गाड़ी तक लाई। तब तक ड्राइवर अंकल ने गाड़ी ठीक कर ली थी। वो इसे लेकर सीधा डिफेंस में आ गई, जहाँ यहाँ इसकी बहन का घर था। हुर्रियत की हालत देखकर दोनों परेशान हो गई। सबसे पहले इसने हुर्रियत को शावर लेने के लिए मनाया, इसे कपड़े चेंज करवाए, फिर इसे कुछ खाने के लिए दिया। वो कुछ भी नहीं खा रही थी। बहुत मुश्किल से जीनत ने इसे कुछ नवाले खिलाए, फिर इसे नींद की गोली दे देकर सुला दिया। इस पर ब्लेकर ठीक कर दिया। इसके सरहाने बैठी गौर से इसके चेहरे देखती, कुछ ही माह में कितना टूट बिखर गई थी। इसके होंठों से किसी का नाम अदा रहा था, मगर जीनत न समझ सकी और किसी पुकार रही थी। वो इसे डिस्टर्ब किए बगैर कमरे से बाहर आ गई। 2 दिन तक इसे बुखार रहा, फिर जाकर कुछ हालत समझ ली तो उसने ज़ैनब और उसकी बहन को गांव जाने के बाद क्या हुआ सब बता दिया। प्लीज़ ज़ैनी, तुम अस्पताल जाकर पता करके आओ, वो ठीक है या नहीं। मेरा दिल इस वक्त टूट कर जहर हो गया है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये हुर्रियत भी मर जाएगी। वो इसकी गले लगती फुट फुट कर पड़ी। बहुत मुश्किल से ज़ैनब ने इसे खुसरे, मगर वहाँ वली था, इसलिए वो उनका पहन कर अपना चेहरा छुपा कर गई और नर्स को कुछ पैसे देकर शरियार की हालत पता करवाई। फिर वापस आकर सब हुर्रियत को बता दिया। वो तड़पने लगी, प्लीज़ मुझे इनके पास जाने दो ज़ीनी, इन्हें मेरी ज़रूरत है। मगर ज़ैनब ने इसे घर से एक कदम बाहर निकालने नहीं। हुर्रियत, क्या हो गया यार, वली भी वही है। अगर तुम्हारा जाना सेफ नहीं है तब तक तो हम इसका सारा सच शरियार भाई को न बता दें। तुम वापस नहीं जाओगे, शख्स अभी खुद चल नहीं सकता, तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा। ज़ैनब ने डांट कर इसे कुछ गुस्से से समझाएगा, मगर हुर्रियत कुछ भी सुनने समझने को मूड बनाती। मगर ज़ैनब इसे ज़बरदस्ती अपने साथ से संभाल लेगी। इसका बाबा का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुआ था, वो फिर लाहौर से काफ़ी दूर चली गई थी। ज़ैनब के माँ बाप ने खुशदिली से इसके सवाल के, देखो बेटा, तुम भी हमारी बेटी हो, उस पर सुकून होकर पढ़ाई करो, इसके बाद बेशक वापस चली जाना। ज़ैनब के बाबा ने इसके सर पर हाथ रखा। वो अपनी आंसू पीती बस सर हरा करी काफ़ी, मगर कानों में शरियार के अल्फाज गूंज रहे थे, मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मगर आज वो कहीं नहीं था। वो छुप छुप कर रोती थी। ज़ैनब अच्छे से जानती हुई रोती है, इसकी कहाँ बर्दाश्त होता था। एक दिन इसने हुर्रियत को प्यार से समझाया, तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगी, तुम्हें कभी किसी की मोहब्बत नहीं हुई, तुम्हें कभी किसी की आदत नहीं हुई ज़ैनी। बाबा के बाद दूसरा मर्द है जिसने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी, नाम दिया। हमारे रिश्ते रूहानी तो वो बहुत दूर होकर भी मेरे बहुत पास हैं। रोती तो सिर्फ इस वजह से हूँ जिस वक्त इन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वक्त मैंने छोड़ आई हूँ। मैंने वादा किया था इनके साथ न मांगे। वो उससे फूटी पड़ी थी और ज़ैनब कुछ भी कहने के काबिल ना रही। वक्त गुजरता गया। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए इससे वापस इसी गांव जाना था। वहाँ की औरतों को नई जिंदगी देनी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी हुर्रियत भी अपनी माँ को खो दे। 3 साल गुजर गए, मगर हुर्रियत का दुख और दर्द आज भी वैसे ही था। ज़ैनब 2 दिन पहले ही लाहौर अपनी बहन से मिलने की, तो वहाँ 2 साल बाद शरियार को अपने इलाज करवा कर पाकिस्तान वापस आ गया था और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। इसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था, वो चल फिर सकता था। वली की नज़र अचानक ज़ैनब पर पड़ी। वो जो अपनी बहन के साथ माल आई थी, फिर क्या अगले 2 घंटे में ज़ैनब के इसके कब्जे में थी। बताओ तुम्हारी दोस्त कहाँ है। ज़ैनब को कैसे भूल सकता, ये वो तो थी जिसने हुर्रियत के साथ इस सड़क पर ज़ैनब को कुर्सी पर बांध पड़ी थी। उसके मुंह पर दबोच कर दौड़ा था। मैं नहीं जानती तुम किसकी दोस्त की बात कर रही हो, गुस्से से फंकारी। वाली के गुस्से आसमान को छूने लगा। थप्पड़ इसकी ज़ैनब को दो मारा। इससे पहले को दूसरा मारता नमान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। इसका हाथ पकड़ा, तेरा दिमाग खराब हो गया। वली, हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। नमान गुस्से से दौड़ा। वली ने इससे गिरबान से पकड़ा, तूने इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे हाथ उठाया। वली को ऐसा गुस्सा आया हद नहीं, मगर नमान आज जो लावा बना हुआ था, इसकी एक मौका वली के चेहरे पर दे मारा। ज़ैनब बेतासर लहजे के साथ इन दोनों को देख रही थी। 2 टके की लड़की नहीं, ये इज्जत है मेरी। नमान गुस्से से चीखा। ज़ैनब ने बेजारी से आंखें मीच ली। और वली भी साख्त रह गया। वो वली को छोड़कर ज़ैनब की तरफ बढ़ा, इससे इसका हाथ खोल रहा था। तुम ठीक हो ना। नरमी से ज़ैनब से सवाल पूछा। ज़ैनब ने एक लम्हे से पहले इसका हाथ झटक दिया। तुम्हारे लिए मर गई मैं नमान, उससे कहते वो उठ खड़ी और नमान का दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हुआ। पीछे ही लपका। ज़ैनब मेरी बात सुने। इससे पहले को अगला गला सदाकत का एक थप्पड़ खींच के ज़ैनब ने इसके मुंह पे दे मारा। तुम जैसा मर्द जो इस जैसी घटी इंसान का दोस्त है, भूल जाओ मेरे तुमसे कोई रिश्ता है। मैं आज और अभी वक्त इसी वक्त तुमसे खुला कर केस करूंगी। तुम जैसे मर्द के साथ रहने से बेहतर है मैं तलाक याफ्ता रहूं। वो उसके गुस्से से चीखती हुई कमरे से बाहर निकली और नमान फौरन इसके पीछे लपका। ज़ैनब, तुम घर समझ रही हो। इसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा। इसने एक नफरत भरी नजर नमान पर डाली, फिर अपना हाथ छुड़ाया। आइंदा मुझे छूने की हिम्मत भी न करना। वो जख्मी शेरनी की मात कराई। प्लीज़ यार, आइंदा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, उसकी दोस्ती भी तोड़ दूंगा। प्लीज़ ऐसे मत कहो, मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ भी इसके सामने जोड़ चुका था। ज़ैनब के चेहरे पर मस्तूरी मुस्कुराहट। तो तुम्हें माफ़ चाहिए। इसका सर जोर शोर से हाँ मिला। ठीक है, तो ऐसा जैसे कहूँ करोगे, तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, वरना ये याद रखना हला का नोट्स 1 हफ्ते में तुम्हें पहुंच जाएगा।
नवाब ने फौरन किसी अच्छे बच्चे की तरह आया, मगर जैसे जैसे ज़ैनब बोल रही थी वैसे वैसे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। तुम्हारी माफ़ी सिर्फ एक फ़ोन कॉल बार मुखसिर है, जल्दी से कॉल करो और माफ़ी ले लो। अब वो जो कुछ मगरूर हो रही थी, नमान ने बिना सोचे समझे मोबाइल निकाला, फिर मतलूबा नंबर कॉल मिलाई। अगले 1-2 घंटे बाद इसके फार्म हाउस पर एक ब्लैक कार आकर रुकी। इसमें शरियार सुल्तान बाहर निकला और दोनों अब तक वहीं खड़े थे। बोलो नमान, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ये लड़की कौन है? इसने कुछ संजीदगी से सवाल पूछा। ज़ैनब ने नमान को साइड करते खुद आगे बढ़ी। मेरा नाम ज़ैनब है, हुर्रियत ज़ेशान की बचपन की दोस्त। हुर्रियत के ज़बर शरियार के चेहरे पर चमक उभरी। ये फार्म हाउस आपका है? इसने हाथ से पीछे की तरफ इशारे किया। हाँ, हमारा ही है। शरियार संजीदगी से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आपके भाई वली सुल्तान ने मुझे किडनैप किया और जान से मारने की कोशिश भी, और मेरी इज्जत पर भी हमला करता अगर बर वक्त नमान ना आ जाता। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि आपका भाई आस्तीन का सांप है, वो भेड़िया है। गांव जाने से पहले हुर्रियत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी इसने। इस दिन भी नमान की वजह से कुछ मेरी हाजर नमाजी से हुर्रियत बचा रही है, मगर इस बार वो आपको भी हुर्रियत से बदगुमान कर चुका है। ज़ैनब बहुत संजीदा, बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को पी रही थी। ज़ैनब ठीक कह रही है शरियार भाई, और मैं खुद इसका गवाह हूँ। इस दिन मैंने वली के सर पर आवाज़ मार कर इसे बेहोश किया था। यहाँ से गायब किए वली के साथ हुर्रियत को बचाया था, क्योंकि मैं याश ज़रूर हूँ मगर बगैरत नहीं। शरियार का चेहरा सब सुनकर बेतासर ही रहा। ज़ैनब और नमान दोनों मुतरज़्ज़ब हुए। हुर्रियत कहाँ है? इसने सिर्फ एक सवाल पूछा। इसकी तड़प और बेबसी थी जो ज़ैनब महसूस कर सकती थी, मगर जब तक इसे यकीन न हो जाता कि शरियार अपने भाई को कोई सजा देगा, तब तक वो कभी भी नहीं बताने वाली थी। मैं नहीं जानती हुर्रियत कहाँ है। काश वो मुझे मिल जाती, मगर वो हुर्रियत जो 3 साल पहले खोई, वो अब तक वापस ही नहीं मिली। ज़ैनब के लफ्ज़ों में सच्चाई थी, और वाकई जो हुर्रियत इसके पास थी वो कहीं से भी पहले जैसी नहीं थी। इसने अपने आंसू साफ किए और एक आखिरी नज़र शरियार पर डाली। मुझे हुर्रियत बहुत अजीज़ है। आपको वो 3-4 साल से अजीज़ होगी, मुझे बचपन से है। जो इसे तकलीफ दे, इसका खानदान तबाह करके रख देने की सलाहियत रखती हूँ। आपके भाई का फैसला अब आप पर छोड़ा। अब फैसला आपको नहीं करना है, हुर्रियत सच्ची या आपका भाई। ये आपकी मोहब्बत व तुम्हारे फैसला में चलती शरियार सुल्तान। वो नमान की तरफ, चलो बहुत देर से गायब हूँ, आप भी परेशान हो रही होंगी। इससे कहती हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। नमान इसके सामने आकर खड़ा, उसकी आंखों में कुछ था कि शरियार सुल्तान दल उठा। आप भी एक बहन के भाई हैं, मैं भी हूँ, मगर शायद वली सुल्तान ये बोल चुका है कि इसकी भी आपकी भी एक बहन है। खुदा न करे कल को निमरा को कुछ और, वक्त है इसे संभाल लें। हुर्रिया बेगुनाह थी, इसे अस्पताल से देकर निकाले वली ने। और सुनाना चाहेंगे इसने क्या कहा? नमान अपनी लाल अंगारा आती आंखों के साथ अब सच्चाई बता रहा था, वो जो अपने दिल में दबा के बैठा था। नमान, अभी मेरे बंदों को फोन आया है। वो चिड़िया डिफेंस की किसी बंगले में घुसी है। इसके साथ कोई लड़की भी है। मुझे वो लड़की कल रात तक हर हाल में अपने फार्म हाउस में चाहिए। तो डिफेंस में रहता था, पता करा वो कहाँ गई। जिस वक्त हुर्रियत ससुराल से निकली थी, इसी रात की बात थी जब वलीद ने नमान को फ़ोन करके हुर्रियत को ढूंढने का हुक्म दिया। जैसे अपने घर से निकल नीचे आए तो इसकी भाभी और इसकी बहन ज़ैनब और दोनों ही परेशान बैठी थी। उनके करीब आया, मगर इन दोनों से होती नजर पीछे खड़ी की तरफ गई जहाँ हुर्रियत सो रही थी, और उसकी आंखों में हैरानी भरी। वो लड़की तो इसके अपने घर में थी। ज़ैनब ने बहाने से बहन को वहाँ से गुस्साया, और एक ही झटके में नमान का गिरबान पकड़कर वो चीखी थी, अगर इससे वलीद को पता चला कि हुर्रियत यहाँ है तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। इसकी खूबसूरत काली आंखें इस वक्त अंकार हो रही थी। नमान फकत मुस्कुराहट, और मैं ऐसे क्यों करूँगा? मुस्कुराहट दबाई इसने संजीदगी से वजह। ज़ैनब को अपने अंदर आग की चिंगारियां बढ़ती हुई महसूस हुई। भूलना मत नमान, तुम्हारी अपनी भी एक बहन है, और मेरी बहन इस वक्त तुम्हारे खानदान की बहू है। बहन बेटी बहू इज्जत होती है। इसने नमान को कुछ गैरत दिलानी चाहिए। ठीक है, मैं इस सब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर एक शर्त है। ज़ीनत ने इसे सॉरी नजर से कहा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी माँ की बहू बनकर इस घर में आ जाओ। काफ़ी पल लगे ज़ैनब को इसकी बकवास परवास करने में। अच्छा, बकवास की थी, मगर क्यों ऐसा करो? नमान खुलकर मुस्कुराई, क्योंकि तुम थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी हो। मगर ज़ैनब के चेहरे के तासरात अभी तक वैसे ही थे। थोड़ी अच्छी लगी हो, मगर बाकी सारे जहन हो। एक लफ्ज़ चबाकर कहती हुए पलटी। नमान की नज़र हुर्रियत तक गई। अपने दोस्त के लिए भी नहीं। ज़ैनब ने बेयकीनी से चेहरा मोड़ा और बहुत संजीदा था। अपनी दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी दे सकती हो ना, वरना मैं अपने दोस्त के लिए मोहब्बत की कुर्बानी दे दूंगा। ज़ैनब को जैसे यकीन ना हुआ, इसे धमका दे रहा था। कितने ही पल वो फटी फटी आंखों से देखती रही, फिर हुर्रियत की खातिर करवा घूंढ पड़ने पर राजी होगी। रिश्ता वही देना, मेरे वालिदैन मान गए तो मैं मान जाऊंगी, मगर इस सारे में हुर्रियत का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उंगली उठा के इससे वार की, और नमान तो जैसे जी जान से फदा हो गया। फिर नमान ने खुद ज़ैनब और हुर्रियत को इस्लामाबाद छोड़ने का सोचा, और इस दोनों को बाकायदा ज़ैनब के वालिद के घर ड्रॉप करके गया। वली से झूठ बोला कि इसने सारा डिफेंस छान मारा, मगर हुर्रियत कहीं नहीं मिली। वली की तफसीली तरकर्दी मैं जानता था, वली इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाला।
اس کے بعد بدلے میں 1 سال بعد ہی زینب سے نکاح کر لیا. پھر رخصتی تھی زینب کی پڑھائی میں کم ہونے کو بعد رکھی گئی تھی. نعمان کافی دیر سے شہریار کو ولی کی یہ ستائی بتائے بھی چکا تھا کہ جب شہریار زندگی موت کے درمیان لڑا تھا تب بھی ولی کو حریہ کی اذیت دینے کی پڑی تھی. وہ گاڑی میں آگے بیٹھا تو زینب آنکھیں بند کیے گاڑی کے پشت ٹیک لگائی بیٹھی تھی. سوری، میں واقعی مرد کھلانے کے لائق نہیں. اس نے اپنا چہرہ جھکائے شرمندگی ہار قبول کی. وہ بند آنکھوں سے مسکرائی. ویسے اتنے بھی برے نہیں ہو، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. چلو آپ گھر چلیں، ورنہ آپ ہی نہ سمجھیں کہ میں ان کے دیور کو لے لی. وہ اپنی ہیرو میں بول کر رہی مگر نعمان پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. کچھ منٹ خاموش محسوس کرتے زینب نے آنکھیں کھولی. چلو یہ اخلاق کا نوٹس بھیجنے کا ارادہ بنا لوں. وہ بنا کچھ غصے سے بولی تو فوراً ہوش آیا. نہیں چل رہے ہیں. وہ گھبرا سا ہے مگر مسکرایا. فوراً گاڑی سٹارٹ کی. زینب دل ہی دل میں شکر ادا کری تھی بر وقت نعمان آ گیا، ورنہ اس سے کیا ہوتا. جو بھی تھا اس نے زینب کی حفاظت تو کی تھی نا. اور پھر وہ حریہ کے سامنے بیٹھی اسے ساری حقانی سنا رہی تھی. میں نہیں جانتی انہوں نے یقین کیا یا نہیں، مگر حریہ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کو میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں. وہ کچھ افسردہ ہوئی اور حریہ کا دل ایک بار پھر بہت بری طرح ٹوٹا، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی. اپنا دکھ درد بانٹنا سب چھوڑ چکی تھی. میرے لیے یہی بہت ہے زینی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے ہیں. وہ بس اتنا کہہ کے یہ تھی. پھر واش روم میں بند ہو کر بہت روئی. 3 سال بعد وہ نئے سرے سے یاد آیا تھا. صرف 40 دن کا ساتھ اور 21 سال کا باری پڑ رہے تھے. اس سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی بہت بری طرح سے. وہ شخص جو ہو وہ اس کے باپ کی کاپی تھا، اس کی شہزادوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. پڑھائی پر دھیان دیتی تھی مگر اکثر بہت یاد آتا تھا اور اس سے کبھی کبھی بول نہیں سکتی تھی یا دیتا. اچانک ہوتی بیل سے حریہ کے ہوش میں آتی اس کا موبائل فون بول رہا تھا. اسے محسوس ہوا گال گیلے ہیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر گال چھوا تو پانی سے تھا. ماضی یاد کرتے وہ کب روئی اسے پتہ ہی نہ چلا. رومی کو ایسا سے بیڈ پر لٹا کر اٹھی، موبائل کان سے لگائے اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی جہاں چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. کیسی ہو حور؟ رومی کیسی ہے؟ زینب کی مسکراتی آواز کانوں میں پڑی. ٹھیک نہیں ہوں زینی، 2 دن پہلے اس سے سامنا ہوا. وہ بہت بدل گئے ہیں. ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے. ان کی بیٹی سب سے پہلے پیدا ہوتے میرے ہاتھوں میں آئی. زینی وہ مکمل ہو گیا ہے اور دوری رہ گئی ہوں. زینب دوسری طرف زینب کو سانپ سوکھ گیا. حریہ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بیکی حور. زینب تڑپ کر پکار. نہیں آج تم صرف مجھے سنو. میں سالوں سے اپنے اندر کا وار آج نکال دینا چاہتی ہوں، ورنہ اس لیے مر جاؤں گی. آج سب باہر نکلنے زونی. وہ شخص میری نس نس میں بس گیا. نہیں رہا جاتا کہ ابھی کیا کروں. میں اس کا ہنستا بستا گھر نہیں جا سکتی. وہ ہوش ہے، اس کا حق ہے، مگر ہوشیاں ہر کسی سے ویسے مائیں ضروری تو نہیں نا. اور شاید میری قسمت میں صرف اپنی اچھی ماں بننا لکھا ہے. اس نے پلٹ کر بیڈ پر سوئی رومی کو دیکھا. دوسری طرف کچھ پل کے لیے زینب کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا تھا مگر اپنی رو میں بول رہی تھی. تم نے 3 سال پہلے سال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کس سے چنا ہوگا تھا. آج مجھے اس کا جواب مل گیا. اس نے حریہ اور ولید میں سے حریہ کو چنا تھا. ایک پل کے تصور کے بعد وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی. حریہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. زینت کا دل ہول اٹھ رہا تھا. میں ٹھیک ہوں زینی، تم نہیں سمجھو گی کہ وہ شخص اس کا دل آج ہی میرے لیے دھڑکتا ہے مگر اب وہ میرا نہیں رہا. وہ بہت عجیب باتیں کر رہی تھی جو زینب کے سر سے اوپر گزر رہی تھی. تمہیں کیسے پتہ کہ اس نے ولید کو نہیں چنا؟ زینب کو سوال نے حریہ کا دل تھاما. اس شخص کے لہجے نے بتایا. وہ آپ سے تم تک آیا تھا. حریہ کے کانوں میں شہریار کا ماضی گیا تھا. ایک جملہ گونجا تھا. آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ محبت سے کہیں زیادہ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، اور جس دن آپ سے تم تک آیا تم سمجھ جائے گا کہ محبت عشق تک پہنچ کر اس کی تمام حدیں توڑ چکی ہے. یہ الفاظ یاد آتے ہی یا حد تک مشہور ہوئی. تم نہیں سمجھو گی زینی. وہ بڑبڑاتی ہی کال کٹ کیے واپس بیڈ پر آئی اور رومی کے ماتھے پر بوس دیتی خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی. مگر دوسری طرف زینب کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی الجھن میں ڈال گئی تھی. حریہ کی جانب کا شہریار کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے. اتنی حسد اور اتنی جلن کیوں ہوئی جب وہ بچی حریہ کو ماں کہہ رہی تھی؟ وہ کیسے اتنا زہر اڑ گیا اپنے منہ سے؟ وہ تو اپنی بیوی پر ایک خروش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. کچھ گھنٹے میں اسپتال میں اماں اور نمرہ بھی آگئی. بچی اس نے فوراً کے حوالے کر دی اور رہ رہ کر حریہ کی اجنبی آنکھیں یاد آ رہی تھی. اگلا سارے دن اسپتال میں آیا ہی نہیں. شہریار کا دل ڈوب مرنے کو چاہ رہا تو کتنی تکلیف میں تھی اور وہ بکواس کرتا گیا. اس نے ایک نرس سے پوچھا اس کی بیٹی کو فیور ہوا ہے، آج وہ شاید دوبارہ نہ آئے. جب ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہو تو وہ اسپتال نہیں آتی. وہ اسے سے نیچے بغیر چلی گئی اور شہریار سلطان کا دل ٹوٹ کر زیر زیر ہو گیا. پورے 2 دن بعد شام کے وقت وہ عائشہ کو اسپتال سے ڈسچارج کرا دیا گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کو حریہ تک کون پہنچائے گا. وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سڑک پر بھگانے لگا. اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ڈیفینس میں موجود تھا. مجھے زینب سے ملنا ہے، پلیز اسے بلوا دو. نعمان کے ڈائننگ روم میں بیٹھ کے اس نے التجا کی. اگلے 5 منٹ بعد وہ حاضر ہوئی.
हुरिया ऐसी तो नहीं थी, क्या हुआ है इसे? इसने संजीदे से सवाल पूछा। ज़ैनब के चेहरे पर तहज़ीब मुस्कुराहट नमदार हुई। तो मतलब आप इससे यकीन था कि हुरिया और ज़ैनब रातें में हैं? ये सवाल आप अपने भाई से पूछते तो ज़्यादा अच्छा था। खैर, ज़ैनब ने सब बताने लगी कि इसने वो 6 साल कैसे रो-रो के गुज़ारे। वो यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर में थी। कुछ ही दिनों में इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। इस वक़्त दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी। जब ज़ैनब का क्लास फेल और रज़ा वहाँ दमका। ओह ज़ैनब, इधर आओ, बात सुनो। इसने कुछ ज़ारदाना अंदाज में ज़ैनब को वादी। वो फ़ौरन उठ के इसके पास आई। यार, तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लग रही है, कोई सेटिंग करवा दो। इसने दाँत निकाल कर हुर्रियत को देखते हुए कहा, जो संजीदे से अपने नोट्स बना रही थी। बेटा भूल जाओ, किसी और की है। ज़ैनब ने इससे हरी झंडी दिखाई, मगर रज़ा का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसने हुर्रियत की इरिटेशन पाने के लिए रिजल्ट देर तक जारी रही। एक दिन तो हद ही होगी। इसने हुर्रियत का हाथ पकड़ा। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। हुर्रियत का चेहरा जिल्लत की वजह से सुर्ख पड़ गया। अगले ही पल इसने हाथ उठा था और रज़ा के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। इस थप्पड़ की गूंज के ही दिनों तक सारी यूनिवर्सिटी में घूमती रही। आज तो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की। आइंदा मत हाथ लगाना। मैं किसी के निकाह में हूँ। निकाह का मतलब समझते हो? इमानत हूँ मैं किसी की। और मुझे तुम जैसे लोगों की फजूल दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। जैसे 5 साल का गुस्सा निकाल फट पड़ी थी। सारी यूनिवर्सिटी में छेगों चोरोगी में मासूम जरूर हूँ, मगर तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। आज के बाद जिससे मेरी तरफ मेरी निगाह से देखा, मैं इसकी आंखें तो फोड़ दूंगी। मुझे मासूम समझने की गलती हरगिज़ मत करना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हजूम को देखकर वो गुस्से से गरजी। बस वो दिन और आज का दिन वो बहुत बदल गई। अब कोई इसकी तरफ आंख ठुकाकर देखने से भी 1000 बार पहले सोचता है। काफी देर तक ज़ैनब बोलती रही। फिर अगले इसका गला दर्द कर रहा था। इसे शरियार सुल्तान पत्थर ही हो गया था। इसके अंदर एक तूफान बरपा था। सिर्फ इस वक्त वही जानता था। बहुत देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुआ। क्या एक बार मैं इसकी आवाज़ सुन सकता हूँ? इसके लहजे में बेबसी थी, तड़प थी। ना जाने क्यों ज़ैनब को तकलीफ हुई। इसने हुर्रियत को कान में लाई और मोबाइल स्पीकर पर डाला। कैसी हो हुर, रोमी कैसी है? ज़ैनब ने मकसर यकसर कर पूछा। ठीक हूँ ज़ैनी, 2 दिन पहले इससे सामने हुआ बहुत बदल गई। इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। इनकी बेटी सबसे पहले पैदा होती ही मेरे हाथों में आई। वह मुकम्मल हो गई, मैं दूरी रह गई। ज़ैनब की सांप सूख गया क्योंकि इसने शरियार की आंखों में बढ़ती सुर्खी को बहुत अच्छे से लिखा था। हुर्रियत की आवाज़ न चाहते हुए भीगी। हुर, ज़ैनब ने तड़प कर पुकारा। इन्हें आज तुमसे सिर में सुनूंगी। मैं सालों से अपने अंदर को बाहर निकाल देना चाहती हूँ, वरना इसलिए मर जाऊंगी। आज सब बाहर निकलने दो ज़ैनी। वो शख्स मेरी नस नस में बस गया, नहीं रहा जाता। क्या करूँ मैं? इसका हंसता बसता घर नहीं उजाड़ सकती। वो खुश है, इसका हक है, मगर खुशियाँ हर किसी के हिस्से में आए ज़रूरी तो नहीं। शायद मेरी किस्मत में एक अच्छी माँ बनना ही लिखा है। इसका एक एक लफ्ज़ शरियार के सीने में सुकून के साथ तकलीफ बता रहा था। कुछ पल के लिए के तो ज़ैनब का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। इज़हार मोहब्बत कर चुकी थी वो, गलती से शरियार भी सुन चुका था, मगर वो अपनी हीरो में बोल रही थी। तुमने 3 साल पहले सवाल पूछा था ना कि शरियार सुल्तान किसे चुना होगा। आज मुझे इसका जवाब मिल गया। इसने हुर और वलीद में से हुर को चुना था। एक पल के तो उसे केवल खिलखिला के हंसी। हुर तो मुझे ठीक नहीं लग रही। ज़ैनब का दिल होल उठा। मैं ठीक होगी हूँ ज़ैनी, तुम नहीं समझेगी। वो शख्स और उसका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है, मगर अब वो मेरा नहीं रहा। वो बहुत अजीब बातें कर रही थी जो ज़ैनब के सर से गुजर रही थी, मगर शरियार इसकी एक एक बात समझ रहा था। ज़ैनब ने एक नज़र शरार को देखा। बहुत होमच बैठा था। आंखों की सुर्खी शायद इसके अंदर चलती तकलीफ बयान कर रही थी। तुम्हें कैसे पता इसने वलीद को नहीं चुना? ज़ैनब के सवाल शरियार ने ज़ैनब की जानब देखा। इस शख्स के लिए जिन्हें बता दिया, वो आपसे तुम तक आया है। तुम नहीं समझोगी ज़ैनी। वो बड़बड़ाती हुई काट चुकी थी। ज़ैनब ने उलझी नज़रों से शरियार को देखा। ये क्या बहेलियां बातें कर रही थी? 3 साल पहले क्या फैसला था आपने इस फार्म हाउस पर? अब तो ज़ैनब लीना चाहते हुए बेचैन हुई, मगर इसके बाद जो इसे शरियार ने बताया वो घंटा ज़ैनब के दिमाग से मशरूफ हो गई। वो जब वापस गाँव आया तो काफ़ी रात हो गई। सबसे पहले वो आशीष सबीन के पास गया। इसकी बच्ची का नाम सबीन रखा था। वो अपने झोली में सो रही थी। पास ही बैठी आशी भी सो रही थी। इसने सोई हुई सबीन को उठाया। उसके माथे पर लब रखे। जलता हुआ दिल पर कुछ बेकरार सा हुआ। कुछ देर बच्ची से जी भर को प्यार करने के बाद इसे वापस बेबी कार्ड में रखकर आशी के पास आया। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ इससे देखता रहा, फिर कुछ याद आया। कमरे से बाहर निकला और 6 साल बाद बंद किए अपने कमरे में आया। आज भी इस कमरे में हुरिया की खुशबू महक रही थी। आज भी इसे यहाँ हुरिया चलती फिरती मालूम हो रही थी। शरियार अम्मा की आवाज़ पर पलटा। अम्मा दरवाजे में ही खड़ी थी। अपने अंदर जलती जंग को अंदर ही दबा कर इनके पास आया। इसे वापस ले आओ। अम्मा ने जैसे इसके दिल की बात कह दी। हुरिया को लेकर आओ। मैं जानती हूँ तुम इसके बिना नहीं रह सकते। वो माँ थी और माँ औलाद के दिल में जांग लेती है। शरियार ने खामोशी से सर इस बाप में लाया और आशी वापस पलट गई। वो तो शरिया से बात करने आई थी, मगर इन माँ बेटे की बातें सुनकर वापस पलट गई। हुरिया, ये नाम इसके जहन से चिपक गया था। इसे लग रहा था जैसे ये नाम कहीं सुना हो, पर अचानक इसके जहन में जमाका हुआ। डॉक्टर हुरिया। वो जैसे लम्हों में समझिए इसे अब अपने घर को बचाने के लिए क्या करना है।
कुछ दिन मजीद सड़क गए। वो रोमी को स्कूल छोड़कर हॉस्टल ताल आई। अब वो खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। इसका शहरियार से सामना भी नहीं हुआ था, जो कि अच्छा ही था। अपने कैबिन में बैठी जब सबीन को पकड़े आशी अंदर दाखिल हुई। हुरिया सबीन का चेकअप कर रही थी। फिक्र मत करें, ये मौसमी बुखार है। बच्ची को बुखारी बारीक कपड़े न पहनाएं और इसे कंबल में कौट करके रखें, ये ठीक रहेगी। वो मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज में चेकअप करती तस्वीर बता रही थी। डॉक्टर हुरिया शहरियार। आशी ने हुरिया को बहुत गहरी नज़रों से देखकर जैसे सवाल किया। हुरिया ने फाइल पर हरकत करते हाथ रोके। कुछ ही पल में वो खुद पर काबू पा चुकी थी। सॉरी डॉक्टर हुरिया ज़ीशान, इसने दसवीं मुस्कुराहट के साथ तफसीस की। आशी ने समझने वाले अंदाज में सुना, लेकिन यहाँ का सारा स्टाफ तो आपको हुरिया शहरियार का नाम से जानते हैं। हुरिया अब साख रह गई थी। मैं एक गांव के सरदार की बीवी हूँ, आशी शहरियार सुल्तान। वो कुछ दिन पहले मैंने हवेली को एक गुलाब भी दी है। अब इसके लहजे में फखर था। हुरिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। जी मैं आपने आपको और आपके शोहर को मुबारकबाद इसी दिन दे दी थी। आपको भी बेटी की मुबारक हो। अपने अंदर चलती जंग को अंदर ही दबाकर बजाय रस्मी से मुस्कुराकर नॉर्मल हुई। आशी के चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहट। बिल्कुल मैं जानती हूँ आपका सारा माजी डॉक्टर साहिबा, लेकिन आप शहरियार सुल्तान का माजी थी। मैं हाल और मुस्तकबिल हूँ, इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप मेरे और मेरे शोहर के दरमियान मत आइएगा, वरना मेरी बच्ची अपने बाप से दूर हो जाएगी और मैं इसे किसी एहसास कमतरी का एहसास नहीं होने दूंगी। वो नरमी से हुरिया को समझा रही थी, मगर इसकी आंखों में गुस्सा था। हुरिया परसकून होकर टेक लगाए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी के दरमियान आने की, मगर आप आए ये है जानती हैं, इसलिए बेहतर है आप अपने शरियार से तलाक लें और इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएं। आप इन्हें छोड़कर जब गई थी मैंने इन्हें संभाला, इनके दिल पर मरहम मैंने लगाया और इसकी असलहा हमारी बेटी की सूरत में आपके सामने है। वो हुरिया के दिल पर छुरियां चला रही थी। ये शायद कुछ बता रही थी कि शरियार अब इसका नहीं रहा। वैसे भी दादा जान से सुना था कि आपने वो निकाह सिर्फ मजबूरी में किया था, अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए, मगर अफसोस है कि वो तो 4 दिन बाद ही मर गए। फिर आप कैसे 40 दिन तक इस शख्स के घर में रही? वो कुर्सी से उठ रही थी जब हुरिया ने अपना गुस्से को काबुल करते कुछ सख्त अल्फाज अदा किए। पहली बात यह है कि मैं छोड़ कर नहीं गई थी, मुझे धक्के देकर निकाला गया था और मेरे अंदर इज्जत नफ्स पहले जहाँ से मुझे धक्के देकर निकाला जाए वहाँ मैं मर के भी न जाऊँ। हुरिया की नज़र आशी की कंधों पर रख मौजूद इस पर्पल शाल पर थी, जिसे एक वक्त में सोनिया ने इससे छीना था। बिल्कुल ऐसे ही शरियार को भी इससे छीन लेगी। बाकी दूसरी बात, मुझे आपके शोर में कोई इंटरेस्ट नहीं मिसेस सुल्तान। मेरे पास सिर्फ एक नाम है, हुरिया शहरियार, जिसे मैं मरते दम तक खुद से अलग नहीं कर सकती। आपको पूरा का पूरा शहरिया वो शख्स मुबारक हो। मेरे लिए सिर्फ इसका नाम ही काफ़ी। वैसे भी मोहब्बत और इश्क हासिल कर लेने का नाम नहीं, कुर्बान कर देने का नाम है, जो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। हुरिया अपनी तकलीफ कितनी मुश्किल से जब्त कर ली थी वही जानती थी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। एक सरदारनी होने की हैसियत से मैं ये बात कहूँगी कि तलाक लेकर हड़ताल खत्म करो, वरना मैं तुम्हारी तरफ पलट गया तो मेरे और मेरी बच्ची दोनों मर जाएंगे और तुम इसकी जिम्मेदार होगी। इस बार आशी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती कि मर्द पहली मोहब्बत भूलता नहीं और वो शहरियार सुल्तान के दिल में आज भी दफन थी। और को जैसी थी बातों से कोई फर्क न पड़ा। मुझे तलाक याफ्ता लाने का कोई शौक नहीं। इस गांव में वापस क्यों आई हो ये आप अच्छे से जानती हो। मैं सिर्फ इसलिए वापस आई हूँ कि जिस तरह बचपन में एक अच्छी लेडी डॉक्टर न होने की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया, कोई दूसरा हुरिया ना बनने खोए। और देख लें, आपकी बेटी ने आपको नहीं खोया, क्योंकि आपका केस एक बेहतरीन गायनाकोलॉजिस्ट के हाथ में हुआ। इस बार फखर हुरिया के लहजे में था। जहाँ तक रही बात आपकी इनसिक्योरिटी की, तो अपने शोर को कहकर मुझे तलाक दिलवा सकती हैं, और आपने इनके दिल पर मरहम लगाई है, इतना तो आप रिश्ते की ताकत होगी ना कि आपकी कोई बात टाल नहीं सकेंगे। आशी की आंखों में सर बढ़ गई। वो बिना कोई जवाब दिए निकल गई। पीछे हुरिया किसी बिखरी औरत की तरह कुर्सी पर डाल गई। ऐसा लग रहा था वो हुरिया की रूह को इसके जिस्म से जुदा करके गई हो। स्टडी रूम का दरवाजा नाक कर दिया, अंदर दाखिल हुई। शरियार किसी किताबी मतलब में स्रोत है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। फिर सामने दूसरी कुर्सी बैठ गई। शरिया ने किताब नीचे रख दी, इसकी तरफ देखा। जिसे ज्यादा देर है बोलो, आप इस स्रोत को वापस लाने का सोच रही हैं। आपने मुझसे वादा किया था, आप कैसे वादा खिलाफी कर सकते हैं? आंसू उसकी आंखों से बहते कानों पर फिसल रहे थे। वादा तो मैंने हुरिया से भी बहुत किए थे, आज तक वो नहीं निभाया था। असलन तो मुझे पहले इन वादों को निभाना चाहिए। शरियार का चेहरा बेतासर था, मगर आशी के रग व रूप में आग से रेत करेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश में थी। शरिया न करने शायद जरूर, अगर तुम चाहती हो कि सबीन बाप के प्यार से महरूम रहे तो जरूर जाओ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। आशी को इतना परसकून देखकर कलसी उठी, और इस औरत के यहाँ आने से मेरी बेटी की सोबत पर किस तरह से पड़ेगा। शरिया परसकून था, वो बहुत मासूम है, इसके आने से किसी दूसरे मासूम का कोई मसला नहीं होगा। और ये नफरत बच्चों के दिल में बढ़कर डालते हैं, वरना बच्चे तो सिर्फ प्यार करना जानते हैं कि हस्तला क्या सका। शरियार वो परसकून देखकर आशी गुस्से से उठकर बाहर निकल गई। अब इससे ही कुछ करना था, वरना हुरिया तो शेर वापस लाने का सोच चुका था।
वो वापस अपने कमरे आई, किसी को कॉल मिलाई, मुझे अपने रास्ते से एक पत्थर हटाना, शहरयार की पहली बीवी की मौत चाहती हूँ, ऐसे की हासिल लगती जाइए, हाँ इसका एड्रेस भेज रही हूँ, नहीं इसे जलाकर मारना चाहती हूँ जैसे मैं 1 साल से जल रही हूँ। सफाकी से कहते इसने फोन रख दिया। गांव में यहाँ रात गहरी हो रही थी तो वहाँ शहरयार बहुत खौफनाक ख्वाब के ज़ेर असर उठ बैठा। इसके सीने में आग लगने लगी। समझ नहीं आ रही थी कि इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इसने ख्वाब में हुरिया को तकलीफ में जलते देखा था। वो फौरन उठा और हुरिया के घर की जानब चल पड़ा। वो घर जहाँ 6 साल पहले वो हुरिया को इसके बाप से मिलवाने लेके गया था। वो गहरी नींद में सो रही थी जब इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। इसने सांस लेने तकलीफ हो रही थी। आंखें खोलकर आसपास देखने लगी। सारा कमरा धुएं से भरा हुआ था। हुरिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोमी भी सोई हुई तकलीफ में थी। हुरिया जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर इसकी सांसें रोकने के काज था। सारा घर आग की जद में था। हुरिया साग लगी। बहुत देर के बाद इसने रोमी का ख्याल है वापस बेड तक आई। रोमी अभी नींद में से जागी थी और बुरी तरह से खांस रही थी। हुरिया ने जल्दी से एक मास्क निकाला और रोमी के चेहरे पर लगाया ताकि धुआं इसे नुकसान न दे, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी घर में आग कैसे लगी। वो फौरन अपना मोबाइल ढूंढने लगी, फिर अस्पताल कॉल करके मदद के लिए बुलाया, मगर आग कमरे के अंदर आने लगी। ऐसा लगा था जैसे आग नहीं वो पानी है जो खुद ही अपना रास्ता बना रहा है। कुछ मिनट में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सारे घर को लोग आग को काबू करने लगे, कोशिश करने, क्योंकि धुआं सबके घरों में गया था। हुरिया खांस खांस कर बेहाल हो गई थी। कमरे में इतना धुआं हो गया था कुछ नजर नहीं आ रहा था। रूमी भी शायद खौफ और डर से बेहोश हो गई थी। हुरिया बेड के किनारे टिकी हुई थी क्योंकि कमरे के सारे दरवाजे जल गया था। और फिर वो कब होश हुआ से बेगाना होती बेड से नीचे गिरी, से कुछ पता न चला, मगर शायद सर में बहुत दर्द उठी थी जिसकी वजह से वह नींद गुनोदगी में आई। फौरन जमीन से उठी और आसपास कुछ ढूंढने लगी जब इसका सिर बहुत जोरों से अलमारी से टकराया। इस बार वो बहुत जोर से जमीन पर गिरी। शायद नीचे आग थी जिसके ऊपर इसका वजूद गिरा था। इसे अपने जिस्म का एक एक अंग एक बार फिर आग में जलता हुआ महसूस हुआ, जिसे 6 साल पहले हवेली की किचन से महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था वो आग में जल रही है। वो कुछ मिनटों में जल जल कर मर जाएगी। शायद इसकी कलाई जल रही थी जो शायद कमर वो नहीं जानती थी कहाँ कहाँ से जल रही है, मगर इस बार वो उठ ना सकी। शायद सर से खून भी निकल रहा था और बस इसे जमीन पर लेटी रही। इसने याद करना चाहा आखिरी बार कब खुश हुई थी, मगर ऐसा कोई मौका याद ना आए। इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कसरत याद करनी चाहिए, सबसे बड़ी ख्वाहिश याद करनी चाहिए, और फिर उसे वो ख्वाहिश याद आ गई। अब हम वेलकम करते हैं स्टेज पर टॉपर ऑफ द ईयर डॉक्टर हुरिया शहरयार। सारा ऑडियम लोगों की हजूम से भरा हुआ था जब इसे स्टेज पर बुलाकर इसकी डिग्री दी गई थी। कितनी ख्वाहिश थी कि इस दिन इसके साथ होता, मगर वो कहीं नहीं था। जैसे शहरयार हुरिया के घर के बाहर तरफा से देखा, सारा मोहल्ला इकट्ठा था। हर तरफ आग ही आग थी, धुआं ही धुआं था। इसे सांस लेने में घुटन होने लगी। मेरी ने दीवार की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। फौरन अंदर की तरफ भागा। लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर इससे कोई होश न रहा। इसे सिर्फ हुरिया की फिक्र हो रही थी। इसे महसूस हो रहा जैसे वो आग इस मकान के अंदर नहीं, शहरयार के अंदर कहीं लगी है। वो अपने होश व आस पास हुआ था। आग को फैलाकर कर अंदर भागा। सारा कमरा आग की नजर हो चुका था। वह जमीन पर गिरी हुई थी। बीवी शहरयार को लगा इसकी सांस बंद हो जाएगी। इसका अपना दम घुटता महसूस होने लगा। चीखता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। जल्दी से इसके पास गिरने लगी, आग बुझाई। बीवी आंखें खोले। शहरयार ने तड़प कर इसके चेहरे को थपथपाते हुए फरियाद की। इसे छोड़कर वो कुछ होश में आई। धंधलाती हुई बसीरत के साथ इसने शहरयार को देखने को, मरने से पहले उसे देखना चाहती थी। इसने अपना हाथ हिलाना चाहा, मगर हाथ में बहुत तकलीफ उठ रही थी। बहुत मुश्किल से अपने डबलाई, रोमी मेरी बच्ची से बचाने। आज हुरिया शहरयार की मोहब्बत हार गई थी, ममता जीत की। मरने से पहले इसे सिर्फ और सिर्फ इसकी नन्ही सी जान की फिक्र थी, जिससे इसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, मगर इस सांस का बहुत गहरा रिश्ता था। इसने अपने जिस्म की सारी ताकत को निचोड़कर सिर्फ एक टूटा फूटा फिक्रा अदा किया, फिर होश वहां से बेगाना हो गई। बीवी प्लीज आंखें खोलो, मैं आप दोनों को बचाऊंगा। इसने तड़पते हुए इसे अपने सीने में भेजा, मगर शायद जुदाई का असल वक्त अब आया था। सुबह जब सोकर उठी तो इसे खुशखबरी मिल गई थी। इसका फोन मुसलसल बज रहा था। जब इसने उठाकर कान से लगाया, दूसरी तरफ से जोश से बताया गया आशिक अपनी जीत का जश्न ही लगा। काम हो गया। वो तो खुशी से झूम ही उठी थी। आखिर इसने हुरिया को मरवा ही दिया। एक तरफ आशी की खुशियों का कोई इंतहा नहीं थी, दूसरी तरफ शहरयार सुल्तान जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा था। हुरी और रूमी को अस्पताल लाई गया था। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और कितने ही घंटों से बाहर इंगानों पर लूट फूट रहा था। शायद वो रात के 12 बजे को इनको लाया गया था और अब सुबह के 8 बज रहे थे और डॉक्टर अभी तक कुछ नहीं बता पा रहे थे। वो इंतजार के शुरू में लटका था। सीने की तकलीफ ऐसी जैसे अभी वो डर जाएगा, मगर फिर वो अपना हौसला बरकरार रख रहा था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आईसीयू के दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर ने बहुत मुश्किल से अपने सुन जिस्म को हरकत देते आगे बढ़ा। बच्ची की हालत बहुत खराब है, इसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। आग में शायद कोई केमिकल भी था जो धुएं के जरिए इसके जिस्म के अंदर दाखिल चला गया है। अगले 24 घंटों में क्रिटिकल है। बच्ची बहुत नाजुक है और छोटी है। आप दुआ करें बेहतर
खुदा बेहतर करे। शरियार को समझने वाले अंदाज में सरा, मगर फिर हुर्रिया भी ख्याल आया और मेरी वाइफ इतने धड़कते दिल के साथ हुए। डॉक्टर फ़कत नहीं के भाई सॉरी, जब आप इन्हें यहाँ लाए थे ऑलमोस्ट एंड था। हमने बहुत कोशिश की मगर जो अलग मंजूर। डॉक्टर ने इसे हौसले देने के लिए कंधे पर हाथ रखा मगर शरियार सुल्तान सर पर सुल्तान की छत आन गई। किसी ने सीने से चीर कर दिल बाहर निकाला और नफी में सर हिलाता पीछे होने लगा। इसकी कमर दीवार से लगी, आंखें हद से ज्यादा सुर हो गई, आंसू बेमल होते इसकी आंखों से गिरे और गालों पर फिसलते हुए बेड में जज्ब हुए। डॉक्टर ने अफसोस से शर को देखा। मुझे लगते है आग ने लगी नहीं लगाएगी है, शायद कोई इन्हें मारना चाहता था। अपने आप प्लीज इस मामले में अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। डॉक्टर नरमी से सबदाकर राजदारी में आगे बढ़ गए मगर शरिया ठहर गया। सागत किसी ने जानबूझकर से हुर्रियत से लद किया है, इसका जिस्म मैं दूंगा। एक हवा झोंके ने इसे जंजीर कर दिया, वो हिल ना सका। अभी तो इसके साथ जिंदगी जीना चाहता था, किसी ने इसकी जिंदगी ही छीन ली। अभी तो इसे हुर्रियत से अपने हर अमल की माफी मांगनी थी मगर इसने इतनी मोहलत भी न दी। राहदारी में बहुत से लोग आ जा रहे थे मगर शरियार सुल्तान का दिल मर गया था, वो बस पीछे बेजान रह गया था। कुछ दिन बाद रूमी के पास बैठा था, इसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। रूमी इसके साथ बहुत घुल मिल गई थी, शायद शरियार के बारे में पहले ही रूमी को बताती रहती थी। सच बता, जिस चीज ने शरियार को हैरान किया था वो रूमी के होश में आने के बाद सबसे पहले इसने शरियार को देखकर लफ्ज बाबा कहा था। वो जानती थी शरियार इसका असल बाप नहीं है मगर फिर भी इसने इसे बाप कहा, जिसे हुर्रिया ने इसे बताया था कि अगर वो इसकी माँ है तो इसका बाप शरियार है। वो रूमी को अपने साथ हवेली लाया था और आशी जो कि हुर्रिया से जान छुड़ाकर खुश थी, अब नई मुसीबत इस अपने गले में फंदा नजर आ रही थी। हुर्रिया तो चली गई मगर ये मुसीबत इसकी सर थोप गई। इसको बस न चलता था, इसे शरियार से लग करके हवेली से बाहर फेंक देती। मगर शरियार रूमी को एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रहा था और इन सब में वो सबीन को शायद भूल ही गया था। आशी के अंदर तो जैसे लावा फूट रहा था, अपनी औलाद नजर नहीं आ रही और दूसरों को औलाद को अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, सीने से लगाया जा रहा है। आखिर इसकी जुबान ने जहरीले तेज जला ही दिए। शरिया ने इसी तरह इग्नोर किया जैसे वो इस दुनिया में ही ना हो। और डाइनिंग टेबल में बैठा और आशी गुस्से से लाउंज में चक्कर काट रही थी जब पुलिस हवेली में दाखिल हुई। शरिया ने एक नजर पुलिस पर डाली, फिर दोबारा इसी बेतासर लहजे के साथ रूमी को खाना खिलाने लगा। पुलिस को देखकर एक बार आशी खौफ से कांप उठी। मुहतरमा, आपको डॉक्टर हवेरिया शरियार के कत्ल में गिरफ्तार किया जाता है। एक लेडी कांस्टेबल ने इसका हाथ पकड़कर इसे एक तड़ी लगाई और आशी का वजूद जलों की जर्द में आया। इसने फटी फटी निगाहों के साथ पुलिस को देखा और फिर एक नजर घुमा कर शरियार को देखा, जो ऐसे बैठा था जैसे यहाँ हो ही ना। ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं क्यों मरवाऊंगी इसे? मैंने नहीं मारा किसी को, छोड़ो मुझे। शरियार प्लीज छुड़वाएं मुझे, गुस्से से चीखती हुई आखिर में शरियार को मदद के लिए भगाने लगी। रूमी का खाना खत्म हो गया था। शरियार ने इसके माथे पर लब रखे। चलो जाओ कमरे में, बाबा कुछ देर में आते हैं। नरमी से इसके गाल थपथपाकर रूमी मुस्कुराकर कमरे की तरफ चली गई। इस सारे में पहली बार शरियार ने आशी की तरफ देखा। आशी आंखों में एक उम्मीद थी कि उससे बचा लेगा। शरियार कदम ब कदम चलता इसके पास आया। आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी मगर वो सिर्फ चंद पल की थी, क्योंकि शरियार का भारी हाथ उठा था और इसके चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। आशी के सर पर तो जैसे सारी हवेली ही गुम गई। इसने बेयकीनी से गाल पर रखे हाथ को देखा। सकीना सकीना, अब वो गुस्से से सकीने को आवाजें दे रहा था, जो 2 मिनट बाद हाजिर हुई। इसके पीछे 4 लोग थे। इन सबको देखकर आशी के चेहरे का रंग उड़ गए। पुलिस के 2 कांस्टेबल इन 2 गार्ड्स को गर्दन से दबोचे और शरियार के पास ले आए। बताओ किसके कहने पर आग लगाई थी? शरियार ने अपनी वहशत भरी आंखों के साथ इन दोनों गार्ड्स को पूछा। हमें बीबी जी ने कहा था कि छोटी बीबी जी जिसके घर का पता दे, इस घर में आ जाकर आग लगा देना। हमने बस हुक्म पर अमल किया। वो दोनों गार्ड साथ वाले गांव के सरदार के हैं और सरदार कोई और नहीं, रूमी का सका बाप था। शरियार ने अपना रुख अब रूमी के बाप और इसकी तेरी माँ की तरफ किया। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? अपना गुस्सा जब्त करता इस औरत पर दाड़ा। बहन है मेरी। और शरियार के गुस्से से कांपती सच बता गई। शरियार ने इतनी बेयकीनी के साथ रूह हुई आशी को देखा जब अपना चेहरा झुका गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतनी जल्दी पकड़ जाएगी। क्या बकवास कर रही है? आशी तुम्हारी बहन है। इसने कहा था इसका कोई अपना नहीं है, बस एक माँ बाप थे जिन्होंने घर से निकाल दिया। शरियार पहले से ज्यादा गुस्से से दौड़ा। ये सब झूठ था, इसने सारा ड्रामा किया था क्योंकि आशी की बहन की आवाज कांपी थी। इस बार रूमी के बाप ने इसे बाजू से पकड़ा। जाहिर औरत, इस घर में मेरी बेटी भी पढ़ रही थी। ठीक है, मुझे बेटियां पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ही बेटी को मार दूं। तुम्हें मेरी बेटी से मसला था ना, तो मैंने इसे डॉक्टर हुर्रिया के हवाले कर दिया था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हुर्रिया को कुछ हुआ तो रूमी की देखभाल कौन करेगा? वो जैसी भी है मेरी औलाद है और मेरा खून है। वो भी गुस्से से बटा। मैं नहीं जानती थी कि जिसे मरवाना चाहती है वो डॉक्टर हुर्रिया है।
اس نے مجھے اتنا کہا تھا کہ اپنے دو گارڈ دے، وہ مجھے شہریار کی پہلی بیوی کو مروانا ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے ضبط کرتی شہریار اور اپنے شوہر دونوں کو واضح دے رہی تھی۔ شہریار نے کسی طرح اپنا غصہ قابو کر رکھنا ہی جانتا تھا۔ وہ واپس پلٹو، پوری قوت سے دوبارہ عاشق کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ تم نے جو مانگا میں نے سب دیا، اور بدلے میں تم نے کیا کی دیا؟ میری بیوی کو مروایا۔ تم جانتی بھی ہو وہ کیا تھی میرے لیے؟ میری سانسوں کی روانگی تھی، میرے جینے کی واحد وجہ تھی۔ 6 سال میں نے کس طرح سے گزارے صرف میں یا میرا خدا جانتا تھا۔ مگر تم نے کیا کہا؟ بس تمہیں تو اس بچے کو اپنا نام دو۔ تم کبھی بھی مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرو گی۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر کس حق سے تم نے مجھ سے میری زندگی چھینی؟ وہ درد سے تڑپتا ہو چیخا، اور آشی اپنا چہرہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ کیا پتا جو بچی تم نے اس حویلی کو اولاد کے طور پر دی ہے، وہ اس حویلی کا خون بھی ہے یا نہیں؟ شہریار نے نہایت غصے اور تلخی سے کہتے ہوئے، جیسے اپنے اندر سے زہر اگلا۔ آشی کی روح پہلی بار قابو پائی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر نفی میں سر لایا، مگر اب شہریار کی نظر میں گر چکی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں اس وقت بھی اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ صرف حوریہ شہریار کا تھا۔ میں شہریار سلطان تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شہریار کے الفاظ تھے یا شاید پگھلا ہوا شیشہ جو آشی کی روح کے اندر تک سکرات کر گیا۔ وہ روتی ہوئی بھڑکتی نفی میں سر ڈالنے لگی۔ اس سے پہلے کہ شہریار کے قریب ہوتی، شہریار 2 قدم دور ہو گیا۔ میں تم سے نکاح صرف مجبوری ہی کیا تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکی کی عزت بچانے کا یہی بہترین حل لگا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں تمہارے بنے ہوئے جال میں پھنس رہا ہوں۔ فکر مت کرو، وہ بچی جس کو بھی ہے میں اسے باپ کو پورا پیار دوں گا، مگر اس بچی کو تمہاری جیسی ماں کبھی نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے سہارا دیا، وہ قیامت تک میری روح کو چھلنی چھلنی کرتا رہے گا۔ میں نے تم پر رحم کیا تھا، تمہیں اپنے اس گھر میں جگہ دی، اور تم نے کیا کیا؟ مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ وہ میری بیوی تھی، وہی میری بیوی محبت ہے، وہی میرا عشق تھی، وہی میری زندگی تھی، وہی میری رگوں میں بہتا ہوا خون تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، تم نے اسے مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ آج کے بعد میں ساری زندگی تمہاری شکل دیکھنے کے بھی رواں نہیں، اور اپنی بچی کو بھی تم سے دور رکھوں گا، کیونکہ وہ اس وقت صرف شہریار سلطان کی بیٹی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ میں اسے پال لوں گا اور میں اسے اپنا نام دوں گا۔ شہریار کا لفظ اذیت، تکلیف، بے بسی، دکھ، درد، ہر جذبہ تھا۔ وہ شاید آج بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا، جتنا زندگی میں پہلے کبھی نہ ٹوٹا ہو۔ آشی یقین نہیں آ رہا تھا، اب بھی حوریہ کے گنگا رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو تھمے، وہ کسی شخص پر اپنا دل قربان کر رہی تھی۔ وہ شخص تو پہلے سے ہی کسی اور کا تھا۔ لے جائیں اسے، اور یاد رکھیے گا اس کی سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے میری بیوی کو بے موت مروایا، اس کی موت عبرتناک ہونی چاہیے۔ شہریار نے صفاقی سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ لیڈی کانسٹیبل آشی کو گھسیٹتی ہوئی لے گی۔ وہ اب بھی شہریار کو پکار رہی تھی، مگر شہریار اب بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جانے کے بعد رومی کا باپ آگے بڑھا، شہریار کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں آپ کی بیوی کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر پلیز مجھے میری بیٹی واپس کر دے۔ شہریار کا دل پر جیسے کسی نے آڑی چلائی۔ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف حوریہ شہریار کی بیٹی تھی، اور مرنے سے پہلے اپنی بیٹی میرے حوالے کر کے گئی تھی۔ آج کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا رومی سے کوئی رشتہ ہے، پھر کبھی پلٹ کر اس دہلیز پر مت آنا۔ میں اسے تم سے زیادہ اچھا باپ دوں گا۔ اس شخص کا بے بسی اور شرمندگی سے جھلک گیا، مگر اس نے اپنی بیٹی خود اپنے ہاتھوں سے کھوئی تھی۔ حوریہ نے رومی کو لیگل اڈاپٹ کیا تھا، اور ان پیپرز میں یہ صاف لکھا تھا کہ اگر حوریہ کچھ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد رومی کی کسٹڈی اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ وہ دونوں پلٹ گئے۔ حویلی سنسان ہے، اگر بس حویلی میں کوئی بچا تھا تو شہریار اور 2 معصوم بچیاں تھیں جن کا شہریار سے خون کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر شہریار نے پھر بھی خود کو ان کا باپ مان لیا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، اس وقت اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا تھا، کانوں میں صرف حوریہ کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا شہریار سلطان کہ کسے چنا ہوگا، آج مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ وہ شہریار سلطان کے کتنے قریب سے جانتی تھی۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے کا منظر چلا جب نعمان اور زینب اس سے بتا کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو ولید سومے پر بیٹھا اپنے ناک سے نکلتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ شہریار کو اس وقت فارم ہاؤس سے دیکھ کر کچھ گڑبڑایا، مگر پھر اپنی حالت جلدی قابو کرتے اٹھا۔ ارے بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ خود کیوں آئے؟ وہ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے شہریار کو صفے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار کافی سنجیدہ نہ جانے کیوں آج ولید کو شہریار کی آنکھوں کا کافی خوف محسوس ہوا۔ نمرہ کڈنیپ ہو گئی تھی ولید، اور 4 دن بعد بہت بری حالت میں پولیس کو ملی۔ کسی نے اس کے ساتھ بہت شہریار نے 10 دن بعد کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ولید کی تو رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تو فوراً صوفے سے اٹھا، آنکھیں لال انگار ہو گئی۔ کس کی ہمت ہوئی ولید سلطان کی بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس شخص کو زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ وہ وحشی انداز میں چیخا تھا۔ شہریار صفے سے اٹھا سامنے آیا۔ جس شخص نے تمہاری بہن کو ہاتھ لگایا تھا تم اسے زمین میں گاڑنے کی بات کرتے ہو؟ جس شخص نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، اس پر گندی نظر رکھی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، کیا مجھے اس میں زمین میں
जिंदा नहीं गाड़ना चाहिए। शरियार के बेतासर लहजे में पूछे गए सवाल पर वलीद की जबान तारों से चिपक गई। वो बेयकीनी फटी फटी निगाहों के साथ शरियार को देखता रह गया। भाई, इससे पहले कि वो अगला लफ्ज अदा करता, शरियार ने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोक दिया। शरियार बहुत खामोश था, मगर इसकी आंखें बता रही थी कि इसके अंदर कितनी सारी जंगें एक साथ चढ़ रही थी। तुम बहुत छोटे थे जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ। मैं नहीं जानता कि जिस तरह मुझे बाप की कमी महसूस हुई तुम्हें भी हो। मैं तुम्हें भाई नहीं बाप बन के पाला, तुम्हारी हर बेजाज जिद पूरी की, तुम्हारे लाड उठाए, तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए। और तुम कब से इतने फहाश और इतने बेगैरत हो गए कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते फिरो। शरिया सुल्तान के लहजा बिखरा था, आवाज कांपी थी। सामने खड़ा लड़का इसका भाई कम बेटा ज्यादा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इसकी बीवी को तकलीफ देने वाला इसका अपना भाई था। वलीद सुल्तान की रूह तड़प उठी। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे वाजियत का मौका दें। वो फौरन शरियार के करीब आया, मगर शरियार का हाथ उठाता और वलीद सुल्तान के चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। काश मैं तुम्हें यह थप्पड़ तब मारता जब पहली बार तुम स्कूल में झगड़ा करके आए थे। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी तरबियत ही गलत की, तुम्हारी ही गलती को नादानी समझ के मैं इग्नोर करता रहा। इस शायद बड़े होने तक तुम खुद समझदार बन जाओगे, मगर मैं नहीं जानता था। मैं तो अपने भाई को एक शैतान बना रहा हूँ। शरियार सुल्तान की आंखों से कितने आंसू बेमौल होते इसकी वर्ड में जज्ब हुए। वो वलीद नफसी में सर हिलाता दोबारा आगे बढ़ा, मगर शरियार का हाथ एक बार फिर उठा और उसके दूसरे गाल पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं इसके मुजरिम को कैफे करदार तक पहुंचाऊंगा, मैं इसे महफूज रखूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, मैं इस पर एतबार करूंगा। मगर इसे यकीन था कि मैं अपने भाई को सजा नहीं दूंगा, इसलिए मुझसे नाराज होकर चलेगी। शरीर का हाथ एक बार उठा और वलीद के चेहरे पर दोबारा थप्पड़ दे मारा। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया, मुझे दोबारा भाई कहने की कोशिश मत करना। मैं चाह कर भी तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर सुधर जाओ। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो खुदा की कसम तुम्हारी अपने हाथों से जान लूंगा। शरियार अंगार आंखों इसकी आंखों में डाले संजीदी सी एक गिलास कहता फार्म हाउस से निकल गया। वलीद इसे यकीन नहीं हुआ कि हुर्रिया की वजह से इसके भाई ने इस पर हाथ उठाया। हुर्रिया से नफरत दुगनी हो गई थी। नवान ने इसी दिन वलीद से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। वलीद ने भी दोबारा इससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। नवान की किस्मत अच्छी थी, शायद वो सुधर गया, मगर वलीद सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ गया। शरिया ने वली की हवेली आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। वो तो हवेली नहीं आया, मगर पूरे 28 साल बाद एक लड़की रोती बिलखती हुई हवेली आई और शरियार उसके माँ से मिलना चाहती थी। वो लड़की कोई और नहीं आशी थी। आपके भाई ने मुझे दोस्ती की जाल में फंसाने के बाद मेरी इज्जत के साथ खेला, इसे रोती की मना करती की, मगर शादी से पहले ही सब नहीं करो, मगर इसने जबरदस्ती की मेरे साथ। इसका नतीजा मेरे वजूद में पलता बच्चे है। गोया सारी हवेली वालों के सर पर बम फटा। शरियार का चेहरा एहसास से तस्दीर से सर हो गया। मुसलसल हिच्चियों के साथ रो रही थी। जब मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते हैं इस बच्चे को ज़ाया करवाओ, वरना मुझे इस घर में घुसने नहीं देंगे। प्लीज़ आप मुझे और इस बच्चे को वलीद का नाम दिलवा दें। मैं आपकी एहसासमंद रहूंगी, वरना मेरे बच्चे इस जमाने के लिए एक गंदगी का ढेर होगा। इसके अपने हाथ शरियार के सामने जोड़े। शरियार ने फौरन फैसला किया। वलीद को पूरे अढ़ाई ढाई साल बाद फोन किया और हवेली बुलाया। वलीद की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो भाई के बुलावे पर भागा भागा हवेली है, मगर हवेली के आने के बाद इसे बहुत बड़ा धचका लगा। शरियार चाहता था कि आशी वलीद का निकाह हो जाए, मगर वलीद ने शरियार को यकीन दिलाने की कोशिश की। आशी इसकी दोस्त जरूर है, दोस्त जरूर थी, मगर इसने कोई जबरदस्ती नहीं की। मगर शरियार बात सुनने का रवादवा नहीं था। तुम अभी और इसी वक्त निकाह करोगे वलीद सुल्तान, वरना मेरे हाथों तुम्हारी जान ले लूंगा, जिसमें मैंने खुदा की कसम खाई थी। शरियार ने इसे गिरबान से पकड़ते हुए दबोचा। फरीद ने बेयकीनी से अपने भाई का ये रूप देखा। मुझे आपके हाथों मरना मंजूर है, मैं तो तुम्हारे और लेने अपनी बीवी का बदला। वलीद सुल्तान भी दाड़ा था और फिर वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। शरियार सुल्तान ने अपनी गल से 2 गोलियां सीधा वलीद सुल्तान के सीने में उतार दी और इस तरह से इसने सरदारी में इंसाफ किया था, क्योंकि वो इस गांव का सरदार था। मगर फिर क्या, आशी का तो रोना धोना मजीद बढ़ गया। ये आपने क्या किया? वलीद को मार दिया। अब मुझे मेरे बच्चे को नाम कौन देगा? प्लीज आप मुझसे निकाह कर लें। इसने शरियार के पांव पकड़े दिए तो शरियार ने एक नजर वलीद की मैयत पर डाली, फिर आशी से निकाह कर लिया। मैं इस बच्चे को बाप को प्यार दूंगा और अपना नाम भी दूंगा, मगर मेरी जिंदगी तुम्हारी जगह कोई जगह नहीं होगी। मेरी एक ही बीवी है, वो इस वक्त यहाँ नहीं, मगर बहुत जल्द वो यहाँ आएगी। मैं इसे ढूंढ कर वापस ले आऊँगा। याद रखना, मुझसे किसी किस्म की उम्मीद पालने की कोशिश मत करना। ये एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ जो किया वो वलीद की गुनाह का कफारा अदा करने के लिए किया, क्योंकि वलीद की गुनाहों की वजह से कहीं न कहीं मैं खुद भी हूँ। आशी को संजीदगी से इसने हिदायत दे दी थी। इस वक्त आशी ने किसी फरमादार औरत की तरह से हिलाया, मगर कौन जानता था कि वो सिर्फ शरियार को ट्रेप कर रही थी, क्योंकि इससे वलीद की दोस्ती के दौरान पता चला था कि इसका बड़ा भाई है और शरियार की तस्वीर देखकर तो जैसे इसकी दीवानी हो गई थी। फिर इसने वलीद को इस्तेमाल करने का सोचा। इससे उम्मीद नहीं थी कि शरियार वलीद को मार देगा, मगर जो भी हुआ इसका फायदा ही हो गया। वो औरत नहीं थी, औरत के नाम पर दबा थी जो अपने ही मासूम बच्चे को
استعمال کیے کسی رشتے کو تعمیر دے رہی تھی۔ جب بنیاد جھوٹ ہو تو پھر رشتے نہیں ٹکتے۔ شریان نے اسے اپنے ہاتھ نہیں لگانا تھا دور کی، کبھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سارے گاؤں آج جان گئے تھے کہ وہ شہریار سلطان کی بیوی ہے اور اسی ولی کی سرداری ہونے کے تمام حقوق دی گئے، اور حقوق جو شہریار نے حریہ کے لیے محفوظ کر کے رکھے تھے، مگر اس سے ابھی ولید کے گناہوں کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ اس لیے وہ سارے حقوق عاشق کو دے دیے اور ہر ملازم پر اپنا حکم چلانے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب اس کا حق ہے۔ مگر جھوٹ، فریب، دھوکہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتے ہیں اور سچائی اپنا لوہا منوا ہی لیتی ہے۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 31 سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا۔ 6 سال پہلے اسے حریہ سلطان عطا کی گئی تھی، مگر اس کا خیال نہیں رکھوایا، اس سے چھین لی گئی۔ عاشق سے نکاح کرنا صرف اس کی مجبوری تھی، ورنہ دل میں تو صرف حریہ ہی بسی تھی۔ 6 سال بعد وہ سامنے آئی، اس سے پہلے کہ شہریار اسے اپنی سچائی پر اذیت دیتا وہ بہت دور چلے گی۔ اسے پانے اور کھونے کے دوران شہریار کو 2 معصوم بچیاں ملی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ ان دونوں بچیوں کی تربیت بہت اچھے تربیت کرے گا۔ دنیا یہ جیت کی دل ہاریاں، کبھی سوچا نہ تھا یوں مل کے ہوں کے جدا۔ او خدا بتا دے کیا لکیروں میں لکھا، ہم نے تو بس عشق ہی کیا۔ آسمان پر بارش زور شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین دونوں اس وقت امان اور نمرہ کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ کمرے میں چلتی سیڑھی سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آوازیں کانے میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ آسمان کی طرف سر کیے کھڑا تھا۔ بند آنکھوں کی اسکرین پر حریہ کا چہرہ پوری آب و تاب سے چمکا۔ وہ شہریار سلطان کی ساری دنیا کا دار اور مدار، بس ایک وہی چہرہ تھا اس کی ہونٹ پر پڑھائے، آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ اس نے برستی بارش کے سہانے اس موسم میں ایک سرگوشی کی۔ اس خوبصورت ماحول میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ مسلسل بجتے فون سے ہوش میں آیا، موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، سامنے جو اسے اطلاع لگی اس کے اندر نہیں ٹوٹ گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ شہریار سلطان کی نیم مسکراتی جذبات سے بوجھل آواز نکلی۔ وہ فوراً اپنی چادر پکڑ کے کمرے سے باہر بھاگا۔ پورے 6 ماہ بعد اسے زندگی کی نوید سنائی گئی تھی۔ وہ اب کمرے کی موسیقی میں ایک دوسرا گانا چل رہا تھا، ایسے ضروری ہو تم مجھ کو جیسے ہواؤں سانسوں میں، ایسے تلاشوں میں تم کو جیسے پیر زمینوں کو۔ سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا ہوا آدھے گھنٹے پہلے اسپتال پہنچا تھا۔ قدموں میں بیقراری اور بے چینی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے کتنی ہی لڑکیوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا حسن اور پرسنالٹی شاندار تھی، مگر شہریار سلطان آج اپنے ہوش و حواس کھو دینے کے در پہ تھا۔ آخر اس کی منزل آ ہی کی۔ وہ بے مطلوبہ کمرے تک پہنچ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ڈور ناپ کیا، گھمایا۔ چڑکی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی 2 ڈاکٹرز اور نرس کھڑی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھا، جسم کا رواں کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایکسائٹ ہوئے تو اسے وہ نظر آئی۔ پوری 6 ماہ بعد اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ کتنی ہی منتیں مانگی تھی شہریار سلطان نے اس کی ان کھلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، کتنی بار تہجد میں رویا تھا۔ بیوی اس کی بھی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی، پر تو جذبات یا خوشی کے سنبھالنے سے مل نہیں رہے تھے۔ بیوی اس بار وہ پوری قوت سے پکار بیٹھا۔ اس پر سب نے پلٹ کر اسے دیکھا، یہاں تک کہ اس کے پانچوں وجود میں بھی۔ ڈاکٹر مسکراتے باہر نکل گئے اور نرسز بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھا، اس تک پہنچ کے اس کے ماتھے پر لب رکھے، مگر ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ شہریار سلطان کو آج اس کا ناراض ہونا بھی پیدا لگا۔ اس کے رخ پھیرنے پر اس نے بائیں جانب گلے کا حصہ شہریار کے سامنے نمایاں ہوا۔ جلد دور رنگ کی ہو چکی تھی، کہیں سفید ملت جیسی جلد تھی تو کہیں گہری بھوری۔ صرف گلا یا گردن ہی نہیں، اس کے ہاتھ، بازو، کمر، ٹانگیں جگہ جگہ آگ کی وجہ سے وہ جلی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ آج پورے 6 ماہ بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ آگ نے بہت زیادہ نقصان تو نہیں بچایا، مگر اس کی خوبصورتی پر برے دھبے ضرور لگ گئے تھے۔ لیکن شہریار سلطان کو آج پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اگر اس رات وہ واقعی سے کھو دیتا تو کیا ہوتا، یہ سوچ اسے مفلوج کر دیتی۔ وہ زندہ تھی، یہی بہت بڑی نعمت تھی۔ شہریار نے گردے سے اس کے بائیں جانب گلے پر لب رکھی۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی، اس کے آنوں سرگوشی کی، مگر وہ رخ موڑے اپنی ناراضگی ظاہر کروا رہی تھی۔ شہریار کو آج اس کی ہر ادا دل پر کھول کر پیار آتا۔ بیوی میری طرف نہیں دیکھیں گی؟ شہریار نے 2 انگلیاں سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بسی سے سوال کیا۔ دوسری طرف رخ موڑے اپنے آنسو قابو کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں بیوی؟ اس بار شہریار نے طرف پر اسے پکارا، اس کے لہجے کی تڑپ وہ بہت اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ اس لیے فوراً اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جیسے ہی شہریار کی نظر اس کے چہرے پر بڑی طرف رو رہی تھی۔ بیوی لہجے میں اذیت، بے بسی، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے حریہ کے آنسو صاف کیے۔ حریہ نے آنکھیں بند کی، اس کے ہاتھوں کو لمس کرنا چاہا، شاید جلد دل پر ہلکی سی بخار برس رہی تھی۔ دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ شہریار سلطان صرف آپ کا ہے بیوی۔ اس کے کان میں سرگوشی کا تھا، شاید وہ اس کے ڈر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور پھر ایسے ہی لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے بہت ساری غلطیاں کی،
मगर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आज भी है। जिस दिन आपने कहा था आपको तकलीफ देने वाला मेरा भाई है, मैंने इसी दिन यकीन कर लिया था बीवी। हुरिया ने बेयकीनी से आंखें खोल कर से देखा। मैं बस ये बात मानने से डर रहा था क्योंकि इसे बेटा बनाकर मैंने पाला था। मैं आपका मुजरिम हूँ क्योंकि मेरी तरबियत में कमी रह गई थी, जिस वजह से वो इतना घटिया निकला। मगर सच मैंने कसम खाई थी कि अगर इसने दोबारा किसी की बहन बेटी को तकलीफ दी तो उसे अपने हाथों से मारूंगा, और मैंने मार दिया। हुरिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब वह इसे आशी से निकाह की वजह बता रहा था। सारी कहानी में यकीनी और दबदबाती आंखों के साथ इसे सुन रही थी। बात के आखिर में इसने सिर्फ एक मान बड़ा फिक्र बोला, ये शरियार सुल्तान सिर्फ आपका है बीवी, और बस। इससे ज्यादा हुर्रियत को सुकून शायद कभी दुनिया में मिला ही ना हो। वो रोना चाहती थी, बहुत ज्यादा, बहुत सारा, और फिर वाकई वो रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके रोने में भी इजाफा होने लगा। फिर वह आवाज रो रही थी। फिर आवाज रोने लगी भी, इसकी हिचकी बंद हो गई। शरियार शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मुझे बहुत सारा रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। अपनी नरमी से आवाज में इसने इतनी मासूमी से ये बात कही थी कि शरियार बेसाता मुस्कुरा उठा। राज भी इतनी मासूम थी जितनी 6 साल पहले थी। वो उठा और इसके पास बेड पे बैठा। फिर नरमी से इसे उठाया, अपने सीने से लगाया। मेरे ये बाजू हाजिर है सिर्फ आपके लिए, जब आपका दिल चाहे मैं इसमें आकर समा सकती हैं। बेशक आज ये भरकर रो लें, ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं कभी भी आपको रोने नहीं दूंगा। इसके बालों पर लब रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी बात सुलाने लगा। फिर वाकई इसकी बाहों में समाती बहुत देर तक रोती रही। अपने अंदर 6 साल की सारी तकलीफ बाहर निकाल देना चाहती थी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं आपकी नस नस में बस चुका हूँ। आप मेरे बगैर नहीं रह सकती। जब इसने खूब रो लिया तो शरियार ने इसके कान में सरगोशी की, और ये बात सुनती हुए सर पर पैर सुर पड़ गई थी। इसे हैरानी से हुई, शरियार को कैसे पता चला ये? शरियार के दोनों हाथ इसी कमर के गिर्द मजबूती से बने हुए थे। इससे दूर ना हो पाई, फिर भी थक हार के इसके सर इसके सीने पर रख लिया। मुझे वाकई मालूम नहीं था, मेरी बीवी बहुत समझदार है। आपने अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप दूसरी औरत का हंसता बसता घर नहीं जाना चाहती थी। शरीर को वाकई इस पर फख्र था। इतनी आला ज़र्फ थी कि इसे इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। लेकिन आपको अपना हक और अपना शोर किसी दूसरी औरत के हवाले करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका था, आपका हूँ, ता क़यामत आपका ही रहूँगा। बस एक गिला है, जब इतनी मोहब्बत थी तो फिर इतनी दूर क्यों चलेगी? एक बार वापस पलट कर तो आती, मैं आपकी हिफाजत करता। बस इतनी मोहब्बत थी, नहीं रहा जाता था दूर, तो फिर क्यों नहीं वापस आई? वो अब इससे शिकवा कर रहा था। इसकी लहजे की उदासी हुर्रियत कर सकती थी। मुझे लगा मैं पलट आई तो शायद अपना वो साफ महफूज मकाम खो दूंगी जो पहले था। मुझे लगा शायद आप मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं आपको छोड़कर चली गई थी, मगर कसम से मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मुझे सोनिया और आपके भाई ने जबरदस्ती सफदार से बाहर निकाला था। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अगर इस बरसती बारिश में ज़ैनब नहीं आती तो शायद मैं किसी बेड़ी के हत्थे चढ़ जाती। ये शायद रास्ता भटकती हुई बेमौत मरी जाती। इसके मरने की बात तो शरियार की धड़कन थमी। खबरदार अगर दोबारा ऐसी बात कही। इसने कुछ गुस्से से डबडा हो रही है ने मासी में सर लाया। यहीं से नहीं लग रहा वो एक मैच्योर और समझदार डॉक्टर है। वो दोबारा बिल्कुल वैसी ही 6 साल पहले वाली मासूम हुर्रिया लग रही थी। शरीर 6 साल और 6 माह बाद आज शायद सुकून से सांस ली थी। जल्दी से रिकवर करें, फिर हम वापस घर जाएंगे जहाँ हमारी बेटियां हमारा इंतजार करेंगी। हमारी बेटियां सुनकर वे साथ मुस्कुराई थी। इसे आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा रूमी कैसी है? इसे हैरानी हो रही थी। इस वक्त तड़पती हुई भी रोमी की जान बचाने को कह रही थी, और आज इसने एक बार भी नहीं पूछा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इसे आपकी अमान में देकर जा रही थी। आप इसे कुछ नहीं होने दे सकते थे, इसलिए नहीं पूछा। और इस लड़की के लहजे का बला का फखर, गुरूर और मान था। सालों गुजर गए मगर इसका शरियार पर मान नहीं टूटा। अच्छा, मगर आपने तो कहा था आपको मुझसे भरोसा नहीं। शरिया ने इसे वो बात याद लाई जिसकी 6 साल पहले हुर्रिया की तरवीद की थी। हुर्रिया का सर नफी में था। वो मेरी बेवकूफ़ी में मैंने ऐसा क्यों कहा था, इसलिए लहजे में तो घुल गया थी। ये पता नहीं शरीर का जैसे एक और शिकवा दूर हो गया। वो उसको हल्का फुल्का महसूस करने लगा। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बेवकूफ़ियाँ भी दिल से कबूल हैं, आप समेत। जैसे शरारतन कह रहा था। हुर्रिया इसकी शरारत समझ गई। फिर हफ्के से रोह मोड़ कर पीछे हो गई। फिर ने नबी से वापस बेड पर लाया, मगर उसके पास ही बैठा रहा। एक इंच भी ना हिला। वो आंखें बंद कर गई। शायद अब ज्यादा सुकून थी, पर सुकून थी, और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में उतर गई। 2 दिन बाद हुर्रियत डिस्चार्ज हो गई। शरियार इसे अपने साथ हवेली लाया, मगर वो हवेली की दहलीज पार नहीं करना चाहती थी। न जाने क्यों इसे लग रहा था वो हवेली दाखिल होने के बाद कभी खुश नहीं रह पाएगी। मगर शरियार ने सिर्फ एक फिक्र में इसके सारे दूर कूर कर दी। हमारा घर है, आपका घर की मालकिन है, बेफिक्र होकर दाखिल हो, मुझ पर भरोसा है ना? फिर वाकई बेफिक्र होकर उसका हाथ पकड़ दाखिल होगी। लाउंज में निमरा अपने 2 साल बेटे के साथ बैठी हुई थी। पास यमन ने सिबीन को पकड़ रखा था। रोमी भी इससे दोनों के पास थी। हुर्रिया को देखकर भागती हुई इसके पास आई।
मामा आ गई, इसके लहजे में बहुत खुशी थी। हुर्रियत को अपने सारे गम दर्द सब इस एक फिक्रे के बाद खत्म होते महसूस हुए। इसने झुक कर रूमी को अपने बाहों में उठाया, फिर चट और चट इसके दोनों गाल चूम डाले। आज शरियार को जलन का कोई एहसास महसूस नहीं हुआ। शायद तब इसे लगा था कि कोई इसकी हुर्रियत को इससे छीन चुका है, तब वो जल गया था, मगर आज वो पुरसुकून था। अमन ने जाने हुर्रियत की कितनी बनाई ले डाली और निम्रा भी बहुत खुश नजर आ रही। इसके बाद इन दोनों ने हुर्रियत से माफी मांगी। अगले दिन वो शरियार की फिक्र में हुर्रियत को फरमाश न करती तो शायद कभी भी वलीद से सरदार से बाहर नहीं निकालता। वो दोनों हुर्रियत से फरमाश हो गई थी। हुर्रियत हवा हवा फर्ज में दौगी, फौरन इनको माफ कर दिया। इन सब की कोई गलती नहीं थी। आप इतना अपना गम में थी। ये सब मेरी किस्मत में होना लिखा था। शायद जुदाई ही बेहतर थी। वे कहते हैं ना, जुदाई के बाद कीमती चीज की कदर बहुत ज्यादा हो जाती है। इसने मुस्कुराकर बात चमटी। अम्मा तो इसके सदके वाली जा रही थी। वो वाकई बहुत अच्छी बहू थी और आशी खुद इनके मुंह लगाना भी गवारा नहीं करती थी। शरियार को भी इस फरमान होना। कुछ देर बाद इनके पास ही लाउंज के सोफे पे बैठ गई। शरियार के हाथों में सबीन थी। इसने अपने हाथ फैलाए। शरियार ने मुस्कुराहट लबों पर रोकते हुए इसके हाथ में सबीन को थमा दिया। क्या आप इसे माँ का प्यार देंगी? इसने बहुत माना फख्र से पूछा। हुर्रियत के चेहरे पर बिल्कुल ममता जैसी मुस्कुराहट थी। इस दुनिया आने के बाद ये सबसे पहले मेरे हाथों में आई थी। इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है और आज से ये मेरी बेटी है। ये रूमी के बाद मुझे बहुत अजीज है। इसने सबीन को अपने सीने में बीचा कर जैसे शरियार के अंग अंग में सुकून उतार दिया था। अगर वो रूमी का बाप का प्यार दे सकता था तो फिर वो सबीन को माँ का प्यार क्यों नहीं दे सकती थी? वैसे वे दोनों मासूम शहजादियां थी। इनके माँ बाप ने क्या क्या गुनाह किए, इन दोनों की इन सब बातों की क्या खबर? और माँ की सजा औलाद को नहीं दी जाती। ये हुर्रियत और शरियार से बाप की गुनाहों की बेहतरीन और कौन नहीं जाता था। हवेली पर रात उतर रही थी। वो हुर्रियत को लेकर वापस इसी कमरे में आया। 6 साल पहले इसका अपना जाती कमरा था। हुर्रियत के जाने के बाद कभी कभार इस कमरे में आता था, मगर इसे इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि इसे लगता था कि कमरा इस्तेमाल करेगा तो हुर्रियत की खुशबू इस कमरे से गायब हो जाएगी। मगर आज इसी कमरे की मालकिन वापस आ गई थी। सभी नमक की बासी थी। वो रूमी को निब्रा अपने कमरे में ले गई थी। शायद वो दोनों जानबूझकर इन दोनों को अलग वक्त दे रही थी। निम्रा की शादी हो गई थी। इसके 2 साल का बेटा भी था। वो जब गांव आती थी तो फिर काफी दिन गांव में रहती थी क्योंकि वो दूसरे शहर से रहती थी। इस वजह से कुछ दिन अब गांव में ही रहने वाली थी। लाइबे की शादी शरियार ने खुद अपनी जगह अच्छी जगह देखकर करवाई थी। अभी वो जवान थी। कोई भी घर में शिफ्ट हो गए। इसके भी घर में शिफ्ट हुए जिंदगी का हक था। और चाची भी सोनिया के साथ इसके साथ गई थी। और दादा जान के वैसे ही इंतकाल हो चुका था। हवेली में सिर्फ शरियार अम्मा ही बची थी। और जब नमरा भाई थी तो काफी रौनक लग जाती थी। वो बैठ कर आंसू टेक लगाकर बैठी तो शरियार स्टडी टेबल पर अपना मोबाइल, गाड़ी की चाबी वगैरह रख रहा था। हुर्रियत ने गौर से इसकी तरफ देखा। आज वो 6 साल पहले की तरह ही इंसान खूबसूरत था। इसकी पुरकश ग्रे आंखें इस एक मुस्कुराहट में ढली हुई थी। हुर्रियत के पास बेड पर आकर बैठा। हुर्रियत के दिल की धड़कन बेसाता थमी थी। आप मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हैं। हुर्रियत के हाथ को लबों से लगाते इसने मान बख्शा। हुर्रियत को खुद पर अनमोल होने का तासर महसूस हुआ। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ। मुझे आपके ज़ाहिरी हुस्न से नहीं, आपसे इश्क है और मैं आपको कभी भी छोड़ूंगा नहीं। चाहे आपकी जवानी ढल ही जाए, मैं आखिरी सांस तक आपका सहारा रहूंगा। इसने हुर्रियत के दोनों गालों पर हाथ रख के इसके माथे पर लब रखे। हुर्रियत को अपने जिस्म रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ। आसमान पर रात गहरी होने लगी और शरियार सुल्तान की इश्क की तकमील में भी लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। अपनी जिंदगी की बहुत सारी आजमाइशों के बाद आखिर करवर हुर्रियत शरियार को अपना करब चापा अपना बना चुका था। इसकी इश्क की तकमील हुई थी। वो अपनी नस नस में बसा चुकी थी। तो वो भी इसकी रूह में गहराई से, बस ऐसा कि शायद वो दोनों अभी कभी एक दूसरे से दूर ही ना हो पाते। शरियार सुल्तान ने आज इसे बहुत बड़ा मान बख्शा था। मोहब्बत कितनी खूबसूरत होती है, आज शायद हुर्रियत को अंदाजा हुआ था। इस वक्त हवेली के लाउंज में से मुस्कुराहटों की आवाजें हो रही थी। जैनब और नमान आज हवेली में मौजूद थे। जैनब जो हुर्रियत के साथ मिलकर न जाने किचन में गुस्सी क्या बना रही थी कि इन दोनों के कह कलाम चका रहे थे। नमान और शरियार भी बातों में मसरूफ थे। पास ही रूबी और सबीन मौजूद थी। रूबी हर 10 मिनट बाद किचन में झांकती थी और अपनी माँ को देखकर वापस आकर बैठ जाती थी। इससे जैसे सुकून मिल रहा था। आखिरकार नमान और शरियार का इंतजार खत्म हुआ। दोनों किचन से बाहर निकले। फिर एक बड़ा सा खाना टेबल पर सेट किया। बाकी सारे भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। आज से पहले इतने मजेदार खाना मैंने तो नहीं खाया। नमान ने जानबूझकर ज़ैनब को तंग करना चाहा। इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक साथ मिलकर कुकिंग की है ना, आपको समझ नहीं आएगी खाना किसके हाथ से बना है। हुर्रियत ने मुस्कुराहट रोकते हुए आवाज़ दी तो शरियार भी साथ मुस्कुराया था। सर रंग की फराक में वो कितनी खुल रही थी।
وہ شہریار کے پاس آئی، اس کے ہاتھوں سے سبین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، پھر ملازمہ کے ہاتھوں کا فیڈر منگوایا۔ اب اس سے دودھ پلا رہی تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا سبین اس کی کچھ نہیں لگتی، بالکل اس سے سب کی ماں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے حوریہ معصوم تھی اور جیسے سبین اور رومی معصوم تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی یہ محفل برخاست ہوئی، نماز زینب کے ساتھ ہوئے سے رخصت ہوا۔ ایک اچھا خوبصورت یادگار دن گزار کر وہ واپس چلے گئے تھے۔ حوریہ کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، زینب کا اس کے ساتھ بے نوک سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج حوریہ کا کوئی وجود بھی نہ ہوتا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوتا، اسے کی روشنی اب ڈل چکی تھی، آسمان پر بارش زور اور شوروں سے برس رہی تھی، رومی سبین دونوں تھک گئی تھی، اسے دونوں سو رہی تھی۔ اس کے گرد اچھے سے کمر ٹھیک کرتی حوریہ بالکنی کے دروازے تک آئی اور وہاں اندر کھڑی ہو کر برستی بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس کی پیٹ کے گرد ہاتھ لے کر بہت نرمی سے اپنے ساتھ لگایا، اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے، آنکھیں بند کی، سکون محسوس کیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کی دائیں گال کی ناز کو اپنے لبوں سے محسوس کرتے اس نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی، وہ کھل کر مسکرائی، پھر واپس اسی طرح پلٹی۔ میں شکریہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ نے بہت غصہ کیا تھا مجھے، تم بھی کہا تھا، وہ خفگی سے منہ پھیلاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ شہریار کو خوبصورت ہنسی سارے کمرے گونجی۔ کوئی بات نہیں، آپ شکریہ مت کہیں، بس ہمیشہ میرے ساتھ رہے، مجھے سکون محسوس ہوتا رہے گا کیونکہ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ شہریار نے اس کے چہرے کے تھوڑے سے پکڑتے ہوئے اوپر کیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جگاتے ایک میٹھی سی جسارت کی کہ حوریہ سر سے پیر تک سر پڑ گئی۔ میں آپ سے دوبارہ معافی مانگتا ہوں اس بدتمیزی کی، اور میں نے آپ کو تم کہہ کر جو گناہ سرزد کیا ہے اس کی معافی بھی۔ شہریار کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی آئی تھی۔ حوریہ خفا ہونے کے بجائے اس پر مسکرائی تھی، دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، پھر ہلکی آواز میں منمنا کر بمشکل شہریار سن سکا، شکریہ میرے سکون۔ اس کے لبوں سے جیسے تین الفاظ میں سارے سکون شہریار سلطان کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے مضبوطی سے حوریہ کو اپنے سینے میں بیٹھ دیا اور وہ اس شخص کی پوزلسک پر کھل کے مسکرائی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر وہ پرسکون بارش تھی، وہ بارش جو خوشیاں لاتی ہے۔ میں حوریہ شہریار سلطان کی بیوی، جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے اتار دیکھے، صبر کیا، قربانی دی، خدا نے مجھے اسی قربانی کا صلہ بہت خوبصورت دیا، مجھے شہریار سلطان جیسا قدر کرنے والا، محبت دینے والا، عزت دینے والا ساتھی دیا۔ مجھے سلطان کہنے یا کہلوانے کا کوئی شوق نہیں کیونکہ میں سلطان نہیں بننا چاہتی، میں صرف حوریہ شہریار چاہتی ہوں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کیونکہ وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں جیسے شہر کی ایک معصوم لڑکی سے محبت کی تھی، میں نے خدا سے تہجد میں سے رو رو کر مانگا اور میں خدا نے اس سے میرے نکاح میں دیا۔ میں اس کے دکھ درد سے مٹنا چاہتا تھا مگر درمیان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، میں نے بہت صبر کیا اور دور گئی، میں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، اسے خدا کے امان میں دیا، پھر خدا نے مجھے میرے صبر کا پھل بہت خوبصورت عطا کیا، اسے واپس مجھے تاکہ اپنی ساری زندگی اس خوبصورت اور نیک عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ ہماری ہاتھ خود کو قربان کر سکتی ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں اس سارے گاؤں کا حاکم، مگر وہ حوریہ شہریار ہے میرے دل کی حاکم۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے میری محبت، میرا عشق عطا کیا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ ناول کا کمپلیٹ ہوا۔ یقیناً درمیان میں آپ لوگ بھی میرے تھوڑا سے ایکسائٹ ہوئے ہوگے، لیکن اینڈ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا، ہیپی اینڈ تھا اور زبردست ناول تھا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ اسی طرح کی ایک خوبصورت نیو ٹاپک کے ساتھ، نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔